female partners are not invited among the birth ceremonies. You come with a stigma, you come with a problem. We had our first IVF baby. Let's welcome Dr. Deepak Goenka. Thank you, Deepika, for inviting me. When people say fertility problem, what do you think they oversimplify the most? Lot of patients or lot of the families don't understand. जब आप infertility problem के साथ आते हो, you're not coming only with the infertility problem. You are coming with especially the female partner. Yes. She carries the burden, unfortunately. How often is infertility actually an endocrine or lifestyle issue rather than a structural one? Because हस्बैंड के स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम होगी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. You started IVF in the late 1990s. My dad, Dr. M.L. Goenka, he was the pioneer of infertility management in the entire Northeast. Wow. हमारे पास ऑफर करने के लिए भी बहुत कुछ नहीं था. Late marriages, even after marriages, late first child. People conceive more during holidays because Yes. they are at ease, they are We call having it a stress-free time. Singapore pregnancy. Yeah. आज की डेट में हमें ओबेसिटी भी ज़्यादा मिल रही है, अल्कोहलिज्म भी मिल रहा है, टबैको कंजम्पशन भी मिल रहा है. पहले हम हेसिटेट करते थे फीमेल पार्टनर को पूछने के लिए कि आप अल्कोहल लेते हो कि नहीं लेते. हाँ. वी डॉक्टर्स ऑल्सो आर कंट्रीब्यूटिंग दिस मिस इन्फॉर्मेशन. कपल्स Right. सफ़र फ्रॉम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस. फुटबॉल हो गया, इनमें टेस्टिकुलर इंजरीज होने के चांसेस होते हैं. IVF pregnancy versus normal pregnancy, कोई डिफरेंस है? कि एंजेलिना जोली, शी हैड ए पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर. सर एक ट्यूमर है, ट्यूमर को तो निकाल दिया, अब तो हमारे बच्चा हो जाएगा ना. हाँ. नहीं होगा. 90% ऑफ द गर्ल्स विल बी स्केयर्ड टू टेल इन द फैमिली. फिर हो गया. People know it as a Institute of Human Reproduction or in short IHR or Goenka Nursing Home. इंडिया को सरोगेसी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता था. कैन आई टेल यू वन स्टोरी हियर? Let's welcome our guest today, Dr. Deepak Goenka, a pioneer who has helped define the story of modern fertility care in India. Based in Guwahati, he's the director of the Institute of Human Reproduction and has been practicing assisted reproduction since 1997, making him one of the earliest IVF specialists in India. Over the last 2 decades, he has performed more than 30,000 IVF cycles and hundreds of advanced endoscopic surgeries every year are being performed. What sets his work apart and is its range? Alongside IVF and infertility treatment, his expertise includes reproductive endocrinology, clinical genetics, fetal medicine and advanced ultrasound, and minimally invasive gynecologically laparoscopic surgeries. He has trained at leading institutions in India and abroad and has been closely involved in genetic counseling, prenatal diagnosis, and high-risk pregnancy management. Beyond clinical work, he has trained more than 500 doctors in assisted reproductive technologies and continues to run a structured fellowship program, a certification in his institute in reproductive medicine. His perspective is shaped not just by outcomes, but by decades of decision-making across laboratories, operation theaters, counseling rooms, and delivery wards. We are very grateful for Dr. Deepak Goenka to take time out of his busy schedule and join us on the table today. Let's welcome Dr. Deepak Goenka. Hello. Let's welcome Dr. Deepak Goenka. A very warm welcome, sir. And thank you for trusting us and coming to the show. Thank you, Deepika, for inviting me. It's a big day for all of us. Yes, it is. And I want to create impactful stories around the work that you have done and so much contribution that you have done that I can't even count the number of years you have spent. Number of years I can count, but the amount of experience, expertise that you have given back to the community is really noteworthy. It's a continuous process. Yes. I will start with the questions. Sure. You have worked across infertility, genetics, fetal medicine, and surgery. When people say fertility problem, what do you think they oversimplify the most? Deepika, whenever we talk about the fertility problem, lot of patients or lot of the families don't understand it's not only a medical disorder. It consists of social problem. It consists of your lifestyle problem. Yes, there is a medical problem is always there. It consists of family support. It consists of social support.
everything. They don't even realize कि जब आप infertility problem के साथ आते हो, you're not coming only with the infertility problem, you are coming with so many other things. Right. Especially the female partner, Yes. she carries the burden, unfortunately. Male partners does not carry so much of burden. Female partners are not invited among that birth ceremonies. Still, even today, we see they are not invited in the birth ceremonies of the babies in the family, within the family also. So stigmas are also there. You come with a stigma, you come with a problem, and people don't understand this. So they really simplify एक medical problem. Some people doesn't understand कि ये medical problem है, हाँ. and some people understand कि ये खाली medical problem है. दोनों तरह से problem है हमें. Right. Right. So there's a lot of social stigma, and not to miss the medical part of Not to miss the and which the maximum burden is being borne by the female female partner. counterpart. Right. Yes. You started IVF in the late 1990s. Not exactly me. My dad started infertility treatment. My dad, Dr. M.L. Goenka, he was the pioneer of infertility management in the entire Northeast. Wow. When in fact whole infertility treatment was in the nascent stage, in the world stage. All over world, the whole infertility treatment was in the very nascent stage in the 90s. At that time, he started. Right. And in 95, we had our first IVF baby in month of July 1995. So I was not a part of that team. That was whole credit goes to my father, Dr. M.L. Goenka. And I had my journey started in 96, 97. Right. I went to Australia under the supervision of Dr. Robert Jensen. He was the pioneer out there in Australia in the Sydney IVF clinic. So I had my training under him. Then I came back, did some embryology work, and then I did my post-graduation. And full-fledged I started from the 1st August 2000. Got that. So from that time, I am continuing my obs and gynae practice, infertility, endoscopy, and genetics training, everything. Great. So, what has changed more dramatically since then? Technology, patient biology, or patient expectations? All three. All three. All three. Let's talk about the technology. Right. Since when you have started doing this podcast? It has been quite a year. How many years? 1 year. 1 year only. Yes. Huh? And till 10 years back, we never knew about podcasts. Right. It was, so internet has come in a big way. Yes. Basically, when we are talking about internet, we are talking about the information. So now the patients are much more informed. I will say sometime over-informed or sometime under-informed. So informations are easily available. Yes. That's one part. Technology has changed. Earlier, there was a time we used to talk about the success rate of the infertility management. Before 90s, there used to be just one treatment, or I will say two treatment. थायराइड की मेडिसिन दे देते थे, Right. या फिर हम डीएनसी करते थे. Right. तो ही ट्रीटमेंट था. हाँ. आज से बिफोर 30 years, there were only two treatment Right. among the doctors. Right. डीएनसी कर देते थे, ब्लाइंड डीएनसी, हाँ. या फिर थायराइड की मेडिसिन दे देते थे. ठीक है. We didn't have much diagnostic tools, and हमारे पास ऑफर करने के लिए भी बहुत कुछ नहीं था. Okay. IVF तो बहुत दूर की बात थी. So now we have different treatment. Before treatment, we have multiple modalities to diagnose कि problem कहाँ है. Right. So treatment now, because with the advances, हमारे पास multiple mode of treatments हैं. We identify problem in most of the cases, and we tailor-make the treatment according to the problem. Now coming to the patient profile you are talking about, patient expectations because of the information. Yes. Expectations हमेशा ही रहती है, changing expectations are changing. Right. Patient profile, when I started my practice in 2000, average age of my patients used to be 26 years. Okay. Today, average age of my patients is 36 years. Female partner I'm talking Yes. about. Yes. So 10 साल की age group बढ़ गई. Right. That is because of the more education, more empowerment, and late marriages. Even after marriages, late first child. So we have very clear-cut data, demographic data nowadays available with us. Right. कि in 2000, what was the average age of marriage? Yes. That was somewhere around 22 years. Okay.
Today it is somewhere around 28 years. Got that. Education wise, female partners are nowadays, female education is, all of us are promoting and all of us are empowering. Yes. So it comes with its own price. We are not able to create a balance between personal life, family life and the work life. वो balance रखना कहीं ना कहीं हम miss कर रहे हैं. Right. And another problem with the patients, what we are getting, changes in the, I want to say the problem now, changes we are seeing, weight, lifestyle, the what we are leading now. Right. The average weight BMI, what we used to see earlier in 2000, was somewhere around 23, 24. Today, average BMI, what we see is around 26, 27, 28. So, weight is increasing. Obesity is becoming more rampant. पहले इतनी ओबेसिटी, पहले भी दिखती थी ओबेसिटी, Right. लेकिन इतनी नहीं दिखती थी. आज की डेट में हमें ओबेसिटी भी ज़्यादा मिल रही है, अल्कोहलिज्म भी मिल रहा है एंड टबैको कंजम्पशन भी मिल रहा है. Right. ऑल दिस थिंग्स आर कंट्रीब्यूटिंग इन द प्रॉब्लम. सो चेंजेस तो आ रहे हैं, हर जगह चेंजेस आ रहे This हैं. is for both the male and female counterparts. बोल द मेल एंड फीमेल. पहले Like हम harmful for both. पहले हम हेसिटेट करते थे फीमेल पार्टनर को पूछने के लिए कि आप अल्कोहल लेते हो कि नहीं लेते. हाँ. टिल 15 और 20 years बैक Yes. वी यूज्ड टू हेसिटेट कि आप अल्कोहल लेते हो कि नहीं लेते, Right. आप टबैको कंजम्पशन करते हो कि नहीं करते. टुडे ईच एंड एवरी गर्ल, ए फीमेल पार्टनर, वी आर आस्किंग. Right. So society is changing. So according to the need of the society, according to the changing society, we have to tailor-made our situations. Understood. Noted. So you very vividly covered the dramatic changes, technology, patient biology, and patient expectations that are. Anything to add to patient expectations? How they have changed? पहले जो आते थे, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रहती थी पेशेंट्स के पास. सर जो आपको करना है वट एवर पॉसिबल, उनकी एक्सपेक्टेशन, उनको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है वही नहीं मालूम होता था पेशेंट्स को. Okay. And because of the information or misinformation, I will say, today we are getting patients, सर 100% हो जाएगा ना, आज रात को खाना खा पाऊँगा, उसकी मेरे पास 100% गारंटी नहीं है. Right. एंड सडनली यू आर कमिंग एंड आस्किंग मी, सर ये ट्रीटमेंट लेने से 100% हो जाएगा ना. कहीं ना कहीं वी डॉक्टर्स ऑल्सो आर कंट्रीब्यूटिंग दिस मिस इन्फॉर्मेशन, बट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज नथिंग कॉल्ड 100% एनीवेयर इन द वर्ल्ड. Right. Yes. The average success rate of IVF is 50 to 60% in best of the clinics. Some cycles, some months we get little bit more, some months we get little bit less. But in a good clinic, average success rate is 50 to 60%. And that doesn't give you 100% guarantee. Overall, yes, 90% of the patients who come to the clinic, they get baby. But still it is not 100%. I get that. So patient की expectation कई बार ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाती है, जहाँ दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मिस इन्फॉर्मेशन, आइदर बिकॉज ऑफ द मिस इन्फॉर्मेशन और बिकॉज ऑफ द सोशल एक्सपेक्टेशन और फैमिली एक्सपेक्टेशन. बहुत प्रेशर रहता है बच्चों पे, तो दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन. I get that. So somewhere it's not just patient, but the family and the peers around also create a lot of pressure. It is. I get that. Moving on to the next part. As you mentioned that couples are arriving more aware and hence they are adding to the pressure in some way. Yes. From your experience, how often is infertility actually an endocrine or lifestyle issue rather than a structural one? Because structure will definitely plays the role. हाँ. They are the primary problems. Either ट्यूब में प्रॉब्लम हो गई फीमेल के, हस्बैंड के स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम हो गई, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर कोई फाइब्रॉइड या एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है. दीज आर वी कॉल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम. ठीक है. नाउ only curing the structure, suppose there is a tumor what we call fibroid, if I do the surgery and can I claim that fibroid निकालने के बाद उनको pregnancy हो जाएगी? Yeah. No, I cannot claim that. Lifestyle endocrine problems को हमें tackle करना ही पड़ेगा. If the patient is continuously consuming alcohol or taking tobacco, obesity है, obesity को handle नहीं किया, PCOS है, PCOS को हमने control नहीं किया, थायराइड है, थायराइड को कंट्रोल नहीं किया, एंड जस्ट हमने ट्यूमर को निकाल दिया, फाइब्रोइड को निकाल दिया, Right. दैट विल नॉट गिव अस द रिजल्ट. अनलाइकली दैट इट विल गिव अस द रिजल्ट. Okay. तीनों एस्पेक्ट को हमें पैरेलली रख के
हैंडल करना पड़ता है, Structural, endocrinal, एंड लाइफ स्टाइल. and lifestyle. तीनों. All three are equally important and equally prevalent है. I won't say कि structural problems are more prevalent or endocrine problems are less prevalent. Right. All three are equally prevalent Yes. and all three have to look after equally. Understood. यहाँ पे भी पेशेंट की एक्सपेक्टेशन रहती है, सर एक ट्यूमर है, ट्यूमर को तो निकाल दिया, अब तो हमारे बच्चा हो जाएगा ना. हाँ. नहीं होगा. ट्यूमर इज़ 1 part, 1/3 वी हैव टेकन केयर. 1/3 हमारा एंडोक्राइन प्रॉब्लम को भी हम टेक केयर कर सकते हैं. थायराइड है तो थायराइड की मेडिसिन दे सकते हैं, बट रिमेनिंग 1/3 तो आपको खुद को टैकल करना पड़ेगा. Yes. अगर आपके ओबेसिटी है तो आपको डाइटिशियन से मिलके एक बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट लेके रेगुलर जिम जाके उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा. वहाँ पे आपका एफर्ट रहेगा. Right. अगर आप सोचते हो कि खाली डॉक्टर के एफर्ट से या फिर मैं वाइफ को इंजेक्शन दे रहा हूँ, वाइफ को मेडिसिन दे रहा हूँ, हस्बैंड अपना अल्कोहल लेते रहे, दैट्स यूजलेस. आई डोंट थिंक दैट यूजुअली क्लिक्स. Okay. यहाँ पे तीनों का इक्वल पार्ट होता है, डॉक्टर, वाइफ एंड द हस्बैंड. All three of us has to give equal efforts, Right. then only we get the success. And I'm sure there's a lot of other kind of a mental and emotional support that the near and dear ones need to बहुत ज़रूरी provide. होता है. Can I tell you one story here? Sure. It's a every household story this. Yes. देखिए in wherever there is a infertility problem, एक वर्ड आता है, एक 3 word का एक स्टेटमेंट आता है everyone, फिर हो गया. हमारे कम्युनिटी में, हमारे इंडियन सोसाइटी में मेंस्ट्रुएशन इज़ रिलेटेड विथ रिलीजन. Yes. हम टेम्पल्स में नहीं जाते, घर में पूजा नहीं करते. किसी भी गर्ल का मेंस्ट्रुएशन इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग. यूजुअली नॉट नेसेसरी ये सबको बताया जाए कि आज इस गर्ल को मेंस्ट्रुएशन आ गया, Right. नॉट नेसेसरी. Right. लेकिन आज हमारे हाउस होल्ड में क्या होता है, जब भी मेंस्ट्रुएशन आता है किसी भी बच्ची को, तो होल हाउस होल्ड नोज दैट, बिकॉज वो किचन में नहीं जाती, Right. बिकॉज वो घर में पूजा नहीं करती. Right. तो ऐसा नहीं कि वो पर्सनल रहता है, Right. वो विद इन द फैमिली एक इवेंट हो जाता है. छोटा सा एक इवेंट है, इनसिग्निफिकेंट या सिग्निफिकेंट वाट एवर इट इज़, एक इवेंट वो फैमिली में रह जाता है. Right. सो इट्स नॉट ए पर्सनल थिंग. Yes. एंड जब भी आप प्रेगनेंसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खाली कपल एक्सपेक्ट नहीं करते, Yes. पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं. Yes. बहुत सपोर्टिव पेरेंट हो गए आज के डेट में. लेकिन जब भी मेंस्ट्रुएशन आता है, आस्क द गर्ल, 90% ऑफ द गर्ल्स विल बी स्केयर्ड टू टेल इन द फैमिली. मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं, फादर इन लॉ बहुत अच्छे हैं, कुछ भी बोलते नहीं है. जैसे ही बच्ची घर में बोलती है मॉम मेंस्ट्रुएशन आ गया, मदर एक लाइन बोलती है, फिर आ गया. ये फिर आ गया क्रिएट्स सो मच ऑफ प्रॉब्लम. So much of problem. वो मेंटली एक इनके ऊपर बहुत प्रेशर देता है, उससे हार्मोन्स बहुत इम्बैलेंस होते हैं. तो ये पेरेंट्स कई बार समझ नहीं पाते, बोलते हम तो बहुत सपोर्टिव है, हमने तो कभी उनको बोला ही नहीं कुछ. हाँ. नहीं, आपने बोला कि आपको पता ही नहीं चला कि आपने कब बोल दिया. आई थिंक वो आप अपने एनवायरनमेंट से सीप कर लेते हो, जो टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है Yeah. या सपोर्ट है. ओवर थिंकिंग हो जाती है, Overthinking. बच्चों को भी ओवर थिंकिंग हो जाती है, कपल को ओवर थिंकिंग हो जाती है, हाँ. और वहाँ पे हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं, यहाँ पे स्ट्रगल हमारा बढ़ जाता है. Gone. सो प्लीज़ स्टॉप टेलिंग फिर आ गया. I get that. I am hoping India is hearing this. The families, वेरी इंपॉर्टेंट. very important. Very, very, very. It's a very deep conversation, I would say. It is important. it is important. important for every family to understand this. आप सपोर्टिव हो, हाँ. बट उनको समझो. बच्चों पे अननेसेसरी प्रेशर मत दो. हाँ. बच्चे स्मार्ट हैं आज की डेट में. जितनी इन्फॉर्मेशन आज 30 साल की उम्र में इन बच्चों को है, हमें 30 साल की एज में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी. नहीं थे. बच्चे ज़्यादा मैच्योर हैं, Yes. रेस्पॉन्सिबल भी हैं, मैच्योर भी हैं, Yes. डिसीजन ले सकते हैं. आप गाइडेंस करो, Right. लेकिन अननेसेसरी प्रेशराइज मत करो बच्चों को. Get that. Totally. Beautifully said. Do you feel IVF is sometimes used too early before correcting hormonal or metabolic problems? Yes, I do feel so. अगेन कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर भी प्रेशर रहता है, कपल के ऊपर भी प्रेशर रहता है, और कहीं ना कहीं हम मेडिकल प्रोफेशनल्स भी इस कम्पिटिटिव वीरा में भूल जाते हैं कि नहीं, हमारे पास भी सक्सेस इज़ मच बेटर अगर हम उनके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को हैंडल करें. Right. कपल भी आते हैं हमारे पास, सर
नेक्स्ट मंथ ही आईवीएफ कर दो। राइट। आपका वज़न ज़्यादा है, उसको पहले कंट्रोल करते हैं। सर वज़न कंट्रोल तो नहीं होता मेरा, ये तो हमारी फैमिली में ही चलता है। अरे बाबा, आपकी फैमिली में कोई चलता नहीं है इसलिए आप वज़न ज़्यादा है, राइट। आप लोग चलो तो सही। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करने के बाद अगर हम आईवीएफ करते हैं तो चांसेस आर डेफिनेटली मच बेटर। राइट। आपके नंबर ऑफ साइकिल्स कमती हो जाएंगे। ओवरऑल यू मे फील यू आर टेकिंग 4 मंथ्स 5 मंथ्स, बिकॉज पहले 4 महीने अपने बॉडी को दिए, राइट। अपने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को कंट्रोल किए, फिर आप आईवीएफ जा रहे हो या इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हो। राइट। और दूसरा हमारे पास कपल है जिसने इमीडिएटली कुछ भी नहीं किया, फट से इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। राइट। ही विल फेस मोर फेलियर्स। अल्टीमेटली जिन्होंने कंट्रोल नहीं किया दे विल टेक लॉन्गर टाइम टू कंसीव, यस। और जिन्होंने पहले कंट्रोल कर लिया उसके बाद इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दे विल टेक लेसर टाइम। सो ओवरऑल टाइम पीरियड विल बी सिमिलर और समटाइम बेटर अगर आप कंट्रोल करके जाते हो। आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल भी कमती रहता है, बिकॉज एवरी फेलियर क्रिएट सम फ्रस्ट्रेशन। 100% and a lot of toll on the body, Yes. financially, फाइनली morally. आपका खर्चा भी कमती लगेगा हाँ. और मेंटल एंड फिजिकल फ्रस्ट्रेशन भी कमती होगी अगर हम पहले से प्रिपेयर होके चले तो। Right. आप वक्त से आप चाहोगे कि आज आए और क्लिनिक में कल से हम आपका ट्रीटमेंट चालू The impulsiveness of बहुत the रहती है, of the बहुत couple. प्रेशर बहुत रहता है बच्चों पे, Pressure रहता है. कपल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। कभी तो सेल्फ इन्फेक्टेड रहता है, कभी पेयर प्रेशर रहता है, कभी फैमिली प्रेशर रहता है, कभी सोशल प्रेशर रहता है। Got that. पहले 10 साल उन्होंने ट्राई नहीं किया प्रेगनेंसी के लिए, अब चाहिए तो इसी महीने चाहिए, Immediately. इमीडिएटली चाहिए। Got that. Right. Understood. So, how do you personally decide when to stop escalating treatment? एवरी केस में अलग अलग इंडिविजुअल डिसीजंस हम लेते हैं। बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने कि कब हमें ट्रीटमेंट और आगे नहीं बढ़ाना है। सो व्हाट डज दैट मीन? आईवीएफ इज़ वन एंड ऑफ द ट्रीटमेंट। बियॉन्ड आईवीएफ वी से गैमेट डोनेशन। गैमेट मतलब दूसरे के अंडे। कई बार एज की वजह से हम साथ बोलते हैं कि नहीं, ये अब आपके खुद के अंडे, सपोज एज 40-42 हो गई फीमेल पार्टनर की। Right. फीमेल पार्टनर का एक लिमिटेशन होता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनके अंडे वीक होते जाते हैं। तो एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम पेशेंट हैज़ ऑलरेडी अंडरगोन फ्यू साइकिल्स, फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स ऑफ ट्रीटमेंट, एंड कपल के उनके अंडे हमें सामने सामने दिख रहे हैं कि उनके अंडे या स्पर्म डैमेज हो चुके हैं, बिकॉज डैमेज हो गई या फिर क्वालिटी डिटेरियोरेट हो चुकी है बिकॉज ऑफ द एज। तो वहाँ पे हमें एक फुल स्टॉप लगाना पड़ता है, समझाना पड़ता है कपल को, नहीं अभी आपके खुद के एग से या खुद के गैमेट से Right. प्रेगनेंसी नहीं पॉसिबल है। दैट्स वन फुल स्टॉप Yes. जहाँ पे एस्केलेट हम करते हैं, नहीं करना चाहते कि खुद के एग से आप फर्दर ट्रीटमेंट करो। ठीक है. सेकेंड हमारे पास एस्केलेशन या फिर फुल स्टॉप पॉइंट आता है, गैमेट दूसरे के डोनर गैमेट से भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती कई बार। अच्छा. सपोज देयर इज ए यूक्रेन प्रॉब्लम या फिर उनके कार्डियक प्रॉब्लम है, खुद के प्रेगनेंसी अगर कैरी करते हैं तो उनकी लाइफ रिस्क हो सकता है। Right. लाइफ इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। Right. Yes. सो यू मस्ट इन्जॉय योर लाइफ। बच्चे इम्पॉर्टेंट है लेकिन आप भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हो। Got that. Yes. तो वहाँ पे भी हम कई बार बोलते हैं फुल स्टॉप लगाओ, Right. गो फॉर द अल्टरनेटिव मीन्स। जैसे अडोप्शन इज़ वन वेरी वैलिड ऑप्शन, सरोगेसी इज़ अनदर वैलिड ऑप्शन। तो ये भी कुछ वैलिड ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो आप इनमें भी जा सकते हो। Got that. सो वो हमें समझना पड़ता है कि पेशेंट का क्या सिचुएशन है, अकॉर्डिंगली फिर हमें फुल स्टॉप लगाने पड़ते हैं। वो इम्पॉर्टेंट है, कपल को भी समझाना और हमें भी समझना, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। Got that. इंडिया में सरोगेसी कहाँ है with respect to other countries or regions in the world? सरोगेसी टिल 2021 और 2022 इंडिया में बहुत होती थी। Okay. इनफैक्ट इंडिया को सरोगेसी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता था। Right. वहाँ पे कुछ लूपहोल्स भी थे, कुछ मैल प्रैक्टिस भी हो रही थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कम अप विथ अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट द सरोगेसी। Right. तो 2022 ऑनवर्ड्स द कंप्लीट हमारा इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट एंड सरोगेसी एंड एवरीथिंग कम्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के एक्ट आ गए, हमारे रूल्स आ गए यहाँ पे। ठीक है. तो उसके बाद कमर्शियल सरोगेसी कम्प्लीटली बैन हो गई अभी हमारे इंडिया में। Okay. इट इज़ ओनली अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। Got that. Any willing woman can opt for the surrogacy
तो वहाँ आप कॉमर्शियली उसको कोई बेनिफिट्स नहीं दे सकते। अच्छा, ओके, तो सरोगेसी इज़ अलाउड इन सर्टेन प्लेसेस, गवर्नमेंट से हमें स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, उन परमिटेड सेंटर में सरोगेसी अलाउड है। ओके। चाहे वो इंटरनेशनली भी हो? इंटरनेशनल सरोगेसीज आर नो लॉन्गर अलाउड। इंटरनेशनल longer बाहर के कपल हमारे पास आके हम्म। सरोगेसी नहीं करा सकते। तो सम रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ब्लैक एंड वाइट में आ गए। राइट, जैसे आपको पहले का एक बच्चा है आपको, हाँ, तो आप सरोगेसी नहीं करा सकते। ओके, ओके, बाहर के आउटसाइड इंडिया के कपल हैं हम्म। तो इंडिया में आके सरोगेसी नहीं करा सकते। फॉरेनर्स को अभी अलाउड नहीं है। एंड दैट इज आई थिंक वेरी वेल प्रोटेक्टिंग आवर ह्यूमन राइट्स इन अ वे। ह्यूमन राइट्स के, यस बिल्कुल। यस, ह्यूमन राइट्स एंड लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं। देयर वेर सम लीगल कॉम्प्लिकेशन इन द पास्ट। उन लीगल अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन दीज स्टेप्स एंड आई फुल्ली सपोर्ट दैट। 100% वेरी नीडफुल। वेरी नीडफुल। यस, लोग अननेसेसरी भी सरोगेसी में जा रहे थे। आज की डेट में सरोगेसी के लिए आपका वैलिड इंडिकेशन होना पड़ेगा। जस्ट आपका फिगर ख़राब हो जाएगा यस, या फिर आप नहीं चाहते, आपके पास टाइम नहीं है, राइट। दीज आर नॉट इंडिकेशन फॉर द सरोगेसी। आपके पास मेडिकल रीजन होना पड़ेगा। So medical, moral, ethical, everything. एवरीथिंग। Noted. This is a new learning for me. I इम्पॉर्टेंट हाँ, है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। got that. We'll move into genetics and fetal medicine. Two questions around it. Genetic testing has become common, but are we always prepared for the answers it gives? Somehow, दीपिका, आई डोंट एग्री विथ यू कि जेनेटिक टेस्टिंग्स कॉमन हो गई है। अच्छा, okay. आई फील देर इज़ ए मोर रोल ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग्स because of multiple reasons. For example, finances, they are still expensive, number one. Number two, अभी भी नॉलेज स्प्रेड अमंग द मेडिकल प्रोफेशनल्स। जेनेटिक्स का नॉलेज बहुत इन्फेंटाइल स्टेज में है। आई वोंट से कि मिड लेवल में भी हम पहुंच गए अमंग द प्रोफेशनल ऑल्सो। आई नो यू जस्ट नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस session, you told me you have done something in genetics. I have done genetics as a subject in my graduation. So you are familiar with genetics. That's why you may feel that is. Yes. But the need of genetic testings and genetic understanding is much more. हम उसको अभी भी अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। आई वोंट से ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं। Okay. बहुत स्कोप है, बहुत चीज़ों में स्कोप है एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई पर्सनली फील आर जेनेटिकली लिंक्ड, Right. जिनको हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे और इनका हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, आई विल टेल यू एग्जांपल ऑफ वन पर्टिकुलर डिसऑर्डर, से अराउंड थैलेसीमिया। आई डोंट नो आपने सुनी थैलेसीमिया के बारे में? हाँ, सुना है। अगर थैलेसीमिया, आई पर्सनली बिलीव इज़ वन डिजीज़ जो हम आज की डेट में इरेडिकेट कर सकते हैं। अच्छा, टोटली इरेडिकेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक पोलियो को हमने इरेडिकेट किया वर्ल्ड में, ठीक है। थैलेसीमिया को हम टोटली इरेडिकेट कर सकते हैं। राइट, नहीं कर पा रहे समहाउ बिकॉज ऑफ द हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने पेशेंट को प्रॉपरली काउंसलिंग नहीं कर पा रहे। नॉट बिकॉज वी डोंट वांट, जस्ट बिकॉज हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं रहती हमारे पास भी, ठीक है। पेशेंट्स के पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। कि अगर यही जेनेटिक टेस्टिंग्स एंड जेनेटिक नॉलेज वेल प्रेवलेंट होता तो आई स्ट्रांगली बिलीव दिस इज़ वन डिसऑर्डर हम इरेडिकेट कर सकते हैं। How do you handle counseling when genetic or fetal findings put families in impossible decision-making positions? This is really a difficult situation. Suddenly you realize you are carrying some particular gene, some particular genetic problem which you never thought, and suddenly I am telling them, or our reports are telling them that they have some particular genetic disorder. Because of that, there can be dire consequences. Yeah, for example, every baby will have some problem. Right. So it is a difficult situation to accept that अगर वो प्रेगनेंसी होती है उनको तो दे विल हैव ए प्रॉब्लमेटिक बेबी को कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे। Right. सो इन सच सिचुएशन, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल आई एम गिविंग यू। सो इन सच सिचुएशन व्हाट टू डू? आई विल गिव यू अनदर इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, समथिंग लाइक दैट, ब्रेस्ट कैंसर। हमारी हॉलीवुड की फेमस स्टार, व्हाट्स हर नेम, इज द मोस्ट फेमस हॉलीवुड स्टार, यू नो एनीवन? हॉलीवुड, Lisa Ray has had cancer. हॉलीवुड की हॉलीवुड ढूंढिए, गूगल करिए फटाफट, ब्रेस्ट कैंसर किसको था हॉलीवुड में?
what very famous movie star, I forgot her name. She had one particular gene which made her more prone for breast cancer. She knew that in future her family, lot of her family member had breast cancer, Right. and she knew that she is more prone for breast cancer. ठीक है. आपके बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है फ्यूचर में. विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक एडवांसमेंट टुडे वी कैन प्रेडिक्ट ऑल दिस थिंग्स. ओके. कल तक ये प्रेडिक्शन नहीं कर पाते थे, आज हम प्रेडिक्शन कर पाए. और ये वाइडली इंडिया में यहाँ के हॉस्पिटल्स में हो रहा है. टेस्टिंग नहीं हो रही, टेस्टिंग नहीं हो रही, होनी चाहिए. होनी चाहिए. लेकिन ये होने से इसके अपने प्रॉब्लम्स भी हैं. कहीं का जेनेटिक को आप चेंज नहीं कर सकते. राइट. जेनेटिक इंजीनियरिंग भी अभी बहुत इन्फेंटाइल स्टेजेस में है. जेनेटिक डायग्नोसिस काफ़ी एडवांस हो गया, लेकिन जेनेटिक ट्रीटमेंट अभी भी बहुत बेसिक स्टेज में है. ठीक है. वी डोंट हैव मच ट्रीटमेंट ऑफर. ठीक है. तो उसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है? सपोज टुडे आई एम टेलिंग ए गर्ल, कल आपको, आपकी उम्र 30 है, 35 40 की एज में आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस है. एंड सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? कैन वी प्रिवेंट इट? कैन वी चेंज हर जीन्स? नो. So this is a difficult situation. यस. That actress has gone for mastectomy. She has removed both her breasts. पहले ही. पहले कैंसर आने से पहले ही. So this was a preventive step राइट. she has taken, but this is a drastic step. दैट्स अ वेरी ड्रास्टिक स्टेप. That's a very very drastic step. अब आपको प्रेगनेंसी होने से बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होगी, सर्टेन सिचुएशन. सो व्हाट आर द ऑप्शंस? या तो हम डोनर स्पर्म ले, या फिर अगर अंडे की प्रॉब्लम तो डोनर एग ले. दैट्स वन ऑप्शन. यस. और हम एडॉप्शन करें, दैट इज़ अनदर ऑप्शन. तो इस तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं हमारे प्रोफेशन में. एंड इंफॉर्मेशन, लव एंड अफेक्शन, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. उसको हम मिसलीड भी नहीं करना चाहिए हमें. यस. वेरी डेलिकेटली यू हैव टू हैंडल दिस सिचुएशन. गेट दैट. इम्पॉसिबल सिचुएशंस बहुत आ रही हैं बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक प्रॉब्लम्स. कई बार हमारे खुद के पास भी आंसर्स नहीं होते. यस. तो वी हैव टू गो वेरी स्लोली इन बेबी स्टेप्स लेके, वन स्टेप फॉरवर्ड, डिस्कस विद द कपल. नाउ डेज वी हैव काउंसलर्स अवेलेबल. ऑनलाइन होने का हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट मिलता है. देर आर सर्टन, पूरे यूरोप में क्या कर रखा है उन्होंने, कुछ एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स इतने रेयर होते हैं, नन ऑफ अस हैज़ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट दोज डिसऑर्डर्स. ठीक है. बुक्स में पढ़ लिया हमने, लेकिन प्रैक्टिकल फर्स्ट टाइम इन द लाइफ हाँ. वी सी समथिंग लाइक दिस. सो हाउ टू इन्फॉर्म, हाउ टू काउंसिल द पेशेंट? यस. यूरोपियन कंट्री व्हाट दे हैव डन, ए पर्टिकुलर डिसऑर्डर, रेयर डिसऑर्डर है, उस पर्टिकुलर क्लिनिक में जाएगा. ओके. सो वन पर्टिकुलर क्लिनिक हैज़ expertise in one particular disorder. राइट. So they are gaining experience like this. But in India, we are still very very मतलब basic nascent stage में हम लोग. We are growing, every day we are growing. Where should doctors draw the line between information and overload? बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया आज की डेट में. ये इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग दोनों की ही प्रॉब्लम है हमारे पास. पेशेंट मिस इन्फॉर्म होकर आते हैं. इंटरनेट हो गया या फिर सोशल मीडियाज़ हो गए, एवरीथिंग हैज़ बिकम ए इंफॉर्मेशन सोर्स. आई पर्सनली डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग फॉर ए फ्रॉम पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर वो घर जाके गूगल करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम को, वेयर फ्रॉम दे विल गेट द इंफॉर्मेशन. आज मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो कहाँ पे खोजूंगा मैं अपनी इंफॉर्मेशन के? व्हिच इज द सोर्सेज अवेलेबल टू मी, व्हाट आर द सोर्सेज इजीली अवेलेबल टू मी फॉर द इंफॉर्मेशन. पहले हम क्या करते थे बिफोर 30 ईयर्स, आज मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई तो हम क्या करते थे, अपने एल्डर्स के पास जाते थे, अपने नेबर्स के पास जाते थे, या फिर हमारे जो रिलेटिव्स थे उनके पास जाते थे, जो सीनियर्स थे उनके पास जाते थे, पूछते थे. उसमें हेजिटेशन भी होता था, प्राइवेसी नहीं रहती थी हमारी. यस. तो वो एक कई बार तो डॉक्टर के ऊपर ब्लाइंड फेथ भी करते थे. राइट. These were the only sources of information, either the sources of information with a breach in the privacy, राइट. or go and do the blind trust on the doctor. गॉट दैट. They were the only two options we had हाँ. 30 years back. हाँ. आज की डेट में I personally don't see anything wrong. Many doctors don't agree with me राइट. कि गूगल डॉक्टर बन के आ गया पेशेंट. राइट. I personally feel that's perfectly all right. यस. Let us be honest with our patient यस. and let them go. I personally
tell my patient, I give in writing, everything I give in writing, whatever we discuss in my chamber, we give our patients in writing, and we tell the patients, go home, think about it, Yes. read whatever you want to read, discuss with whomever you want, You want to. Yeah. and come back tomorrow with all the questions, write in a piece of paper. I usually tell husband wife को WhatsApp कर दे, wife husband को WhatsApp कर दे, so they have a list of questions, Right. and then they can ask me in the next day. Right. So एक इंफॉर्मेशन हम प्रॉपरली शेयर भी कर सकते हैं. यहाँ पे कई बार हम गलती करते हैं, मैंने भी ये गलती की हुई है ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ माई प्रैक्टिस. ओवर इन्फॉर्मेशन दे देते हैं हम. ठीक है. ऐसा नहीं कि हमें कुछ हाइड करना होता है, लेकिन ये हमें भी सीखना पड़ता है कि वी शुड इन्फॉर्म, एक सीक्वेंस बनाना चाहिए. ठीक है. विच इन्फॉर्मेशन शुड गो टू द पेशेंट फर्स्ट, हाँ. विच इन्फॉर्मेशन शुड गो टू द सेकेंड, विच इन्फॉर्मेशन शुड गो लेटर ऑन. सारी चीज़ें एक साथ ओवरबर्डन कर देंगे पेशेंट्स को. पेशेंट डॉक्टर नहीं है, उनकी एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है. हमारी एजुकेशन और हमारी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर डिसऑर्डर इज़ डिफरेंट है. Right. उसको सही तरीके से प्रेजेंट करना Right. इज़ बेसिकली काउंसलिंग. सो एवरी डॉक्टर को भी काउंसलिंग सीखनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है. Yes. हाइड नहीं करना है पेशेंट से, लेकिन ओवर इन्फॉर्मेशन से ओवर बर्डन भी नहीं करना है. Got that. सीक्वेंस में जाना है. आज की डेट में ये इम्पॉर्टेंट है. फ्यूचर में मल्टीपल ऑप्शंस इसके आ सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन. Got that. मैंने ये कहीं सुना है कि when the doctor listens to all your problem, he may not be able to solve everything, but at least the trust builds up and the respect goes up. And when you listen to your patient, half the problems may be solved at that stage only. बहुत इम्पॉर्टेंट है सर. तो बड़ी प्रॉब्लम है कि कई बार पेशेंट भी हड़बड़ी में रहते हैं, हाँ. कई बार हम भी हड़बड़ी में रहते हैं. हमारे पास भी कई बार हम प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाते, Right. और कई बार पेशेंट को सब चीज़ अभी तुरंत चाहिए. We've covered where information overload का. Yeah. Some 2-3 more technical questions. उसके पहले I want to delve into more popular areas where I'm sure audience is waiting to hear from you. IVF pregnancy versus normal pregnancy. कोई difference है? दीपिका, प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस नहीं है. हाँ. खाली इनिशियल मोड ऑफ कंसेप्शन में हमारा फ़र्क पड़ा. आईवीएफ प्रेगनेंसी में हमने हेल्प कर दी थोड़ी सी, ठीक है. हॉस्पिटल में थोड़ी सी हेल्प कर दी. लेकिन वंस द पेशेंट इज़ प्रेग्नेंट, एब्सोल्युटली नो डिफरेंस. फर्स्ट 3 मंथ्स में हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेडिसिन देते हैं प्रिकॉशनरी, Right. कि मिसकैरेज के चांसेस किसी भी प्रेगनेंसी में रहते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम थोड़ी एक्स्ट्रा मेडिसिन देते हैं. हाँ. लेकिन दैट डज नॉट मीन कि एबॉर्शंस नहीं हो सकते. आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी एबॉर्शंस हो सकते हैं, Right. नेचुरल प्रेगनेंसी में भी एबॉर्शंस होते हैं. चांसेस ऑफ एबॉर्शंस आर 10 to 15% इन एनी प्रेगनेंसी, बी इट आईवीएफ, बी इट नेचुरल No. प्रेगनेंसी. ठीक है. ठीक है. डिफरेंस होता है सोसाइटी या फैमिली एक्सपेक्टेशन की. Yes. इसको बेडरेस्ट करना है. हाँ. बहुत दिनों बाद बहुत स्ट्रगल के साथ प्रेगनेंसी हुई है, Right. तो इसको बेडरेस्ट करना है. इसको गोंद के लड्डू एक्स्ट्रा खिलाने हैं. हाँ. बहुत दिनों बाद प्रेगनेंसी घर में बच्चा आ रहा है, Yes. तो उसके पैम्परिंग अलग हो जाती है. Yes. दैट्स द ओनली डिफरेंस. मेडिकली Medically यूजुअली नॉट, not. अनटिल अनलेस देयर इज एज फैक्टर. अच्छा. एज फैक्टर में भी अगर हम कंपेयर करें, 35 ईयर ओल्ड गर्ल की नेचुरल प्रेगनेंसी हुई है हाँ. और 35 ईयर ओल्ड गर्ल की आईवीएफ से प्रेगनेंसी हुई है, तो चांसेज ऑफ प्रॉब्लम्स हाँ. ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज आर सेम. इट इज़ द एज विच मेक्स द डिफरेंस, नॉट द प्रोसीजर. So it's more the psyche around the Yes. patient that is different. दैट इज़ डिफरेंट. ठीक है. पैम्परिंग अलग से होती है. कई Pampering बार अलग से बच्चे एंजॉय भी करते हैं उस हाँ. पैम्परिंग को. Right. Right. ठीक है. Pregnancy of menopause, after menopause. यस, आज की डेट में प्रेगनेंसी आफ्टर मेनोपॉज इज़ पॉसिबल. ये हमें समझना पड़ेगा कि मेनोपॉज क्यों होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर 2 ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर. एक होती है यूट्रस, जहाँ से मेंस्ट्रुएशन होता है Right. और जहाँ पे बेबी ग्रो होता है. ठीक है. दूसरा है ओवरीज, जहाँ से हमारे हार्मोन्स निकलते हैं और जहाँ से हमारे एग निकलते हैं. That's a female counterpart का. फीमेल काउंटर पार्ट की बात कर रहा हूँ अभी मैं. हाँ. मेनोपॉज हमारा फीमेल काउंटर पार्ट में ये Yes. हो रहा है. Yes. तो वहाँ पे हमारे फीमेल में 2 पार्ट हो गए,
दो ऑर्गन्स हैं, Uterus and यूट्रस एंड ovaries. ओवरीज, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं. हाँ. इट इज़ द ओवरीज, वो एज के साथ अफेक्टेड होती हैं. ठीक है. एग्स हमारे ओवरी में ख़त्म होने से Right. हार्मोन्स निकलने बंद हो जाते हैं, और हार्मोन से बंद होते हैं तो यूट्रस से मेंस्ट्रुएशन होना बंद हो जाता है. ठीक है. जब मेंस्ट्रुएशन होना बंद हो गया तो उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज. Right. सो प्रॉब्लम यूट्रस में नहीं है, प्रॉब्लम यूट्रस में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी ओवरीज. ओवरीज में. ठीक है. ओवरीज हमारी वर्क्स लाइक ए स्टोर हाउस, गोडाउन कह लो, स्टोर हाउस कह लो. ठीक है. एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स एट द टाइम ऑफ बर्थ भगवान ने आपको दे दिए, और फिर उस गोडाउन से हर महीने एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स निकल रहे हैं हमारे. ठीक है. एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो एग्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हमारा स्टोर हाउस खाली हो जाता है, राइट. एंड हमारे हार्मोन्स कमती बनते हैं राइट. और मेनोपॉज हो जाता है. ठीक है. ये एग्स हमारे कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं, इट्स नॉट ए फैक्ट्री, इट्स ए स्टोर हाउस. स्टोर हाउस. तो वो बंद हो जाने से हाँ. हमारे मेनोपॉज हो गया. सो हम वो हार्मोन्स बाहर से दे के हम दोबारा इनके यूट्रस में मेंस्ट्रुएशन ला सकते हैं. दैट्स अ वेरी इजी जॉब फॉर अस. अच्छा. बाहर से हमने मेडिसिन दी और मेंस्ट्रुएशन को हम रीस्टार्ट कर सकते सो ओवरीज को रीइग्नाइट करके. हैं. जो ओवरीज रिग्नेट नहीं कर रहे, अच्छा, नहीं कर रहे, ओवरी में अंडे जो हैं, अंडे तो खत्म हो गए हमारे. खत्म हो गए. हाँ. देयर इज नो वे हाँ. वी कैन रिक्रिएट दीज एग्स. ओके. ओके. उन एग्स को हम रिक्रिएट नहीं कर, एग्स से जो हार्मोन बन रहे हैं हाँ. वो हमने बाहर से दे दिए, ठीक है. तो मेंस्ट्रुएशन आना तो शुरू हो गया. हाँ. अब एग्स कहाँ से लाएं? राइट. एग्स के लिए हम डोनर एग्स की हेल्प ले सकते हैं इन सच सिचुएशन. ठीक है. समबॉडी, किसी को मेनोपॉज आ गया हम्म. एंड अब वो चाहते हैं कि उनको प्रेगनेंसी हो, वट एवर द रीजन. यस. अब चाहते हैं कि मेनोपॉज आ गया लेकिन प्रेगनेंसी हो, वी कैन रीस्टार्ट द मेंस्ट्रुएशन विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशंस. एंड एग हम डोनर एग से ले सकते हैं, हमारे पास डोनर बैंक है, राइट. एंड बैंक से हमने एग लिए और हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज करके आईवीएफ करके इनको भी आज की डेट में हम प्रेगनेंसी दे सकते हैं. इट इज़ पॉसिबल. और जो फ्रोजन एग्स होते हैं उनको भी यूज करा जा सकता है यहाँ पे? नहीं, फ्रोजन एग अभी इंडियन गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है. किसी एक गर्ल के, किसी एक कपल के एम्ब्रियो को या एग को दूसरे कपल में, उनके पास सपोज स्पेयर एग्स है, राइट. स्पेयर एग्स को हम दूसरे कपल के लिए यूज़ नहीं कर सकते. नहीं कर, अगर मेरे ही होते हैं तो आई हैव डन ओके, आपने have अच्छा, frozen इसलिए eggs. आपको बहुत पैसे प्री प्लानिंग करनी पड़ती है. आई विल टेक नेम ऑफ डायना हेडन. राइट. हिस्ट्री चैनल में काफ़ी उन्होंने काम किया हुआ है, एंड शी वाज ए ब्यूटी पेजेंट यस. सम पॉइंट ऑफ टाइम. यस. तो शी वाज, आई स्टिल फाइंड हर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेल रेड एंड वेल नॉलेजेबल. उन्होंने क्या किया था, अपने एग्स हाँ. बिफोर मैरिज राइट. प्रिजर्व करा लिए थे. ठीक है. बिफोर मैरिज प्रिजर्व कर, बिकॉज शी वाज सीइंग दैट शी इज बिजी विथ हर प्रोफेशन यस. एंड नॉट येट मैरिड. राइट. एंड आफ्टर मैरिज जब उन्होंने नेचुरली ट्राई किया, राइट. देयर वाज नो प्रेगनेंसी. ओके. तो उन्होंने अपने अंडे बिफोर मैरिज प्रिजर्व करा लिए थे, राइट. एंड आफ्टर मैरिज व्हेन शी वाज नॉट कंसीविंग, शी टुक आउट हर फ्रोजन एम्ब्रियोज, राइट. हस्बैंड के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किए और फिर आईवीएफ से ट्राई, इन विट्रो Right, so फर्टिलाइजेशन, yes. और फिर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई की. शी हैड ट्विंस. Got that. एंड लेटर ऑन सेकंड प्रेगनेंसी के लिए फिर उन्होंने ट्राई किया, Right. फिर नहीं हुआ. Right. उनके फ्रोजन एम्ब्रियो और भी रखे हुए थे, Right. उनको फिर ट्राई किया, फिर अनदर ट्विंस दे हैड. Got that. सो दिस इज़ वन वैलिड ऑप्शन कि एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन या एग प्रिजर्वेशन. Right. एग प्रिजर्वेशन हो गया जब आपके पास कोई मेल पार्टनर, स्टेबल मेल पार्टनर नहीं है. ठीक है. बिफोर मैरिज जब मेल पार्टनर स्टेबल नहीं है तो उसको हम विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट द हेल्प ऑफ स्पर्म, हम खाली फर्टिलाइज कर, विदाउट फर्टिलाइजेशन उनको प्रिजर्व कर रहे हैं, तो उसको एग फर्टिलाइजेशन, This एग प्रिजर्वेशन This कहते हैं. even married women are couples are taking this into consideration कि शायद हमें अभी चाइल्ड नहीं चाहिए पर फ्यूचर में मन किया तो उसके लिए हम प्रिजर्व करते हैं एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन. embryo preservation. एम्ब्रियो प्रिजर्वेशंस आर मच मोर स्टेबल एंड मच मोर. What is the difference between egg preservation and एग embryo? प्रिजर्वेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है. अच्छा. एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन. So it's a in विट्रो vivo, फर्टिलाइजेशन, in vitro fertilization and in vivo. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. In vitro It's a fertilization. part of IVF only. It's a part of IVF, but we freeze it at that stage when the. फर्टिलाइज करके बॉडी में डालने के बजाय उसको फ्रीज करके रख देते हैं. अच्छा. ठीक है. तो एक हो गया एग प्रिजर्वेशन, दूसरा हो गया एम्ब्रियो Embryo प्रिजर्वेशन, preservation. Understood. और तीसरा एक और होता है हमारे पास स्पर्म प्रिजर्वेशन. ठीक है. फीमेल पार्टनर का जैसे हमने एग प्रिजर्वेशन किया, हाँ. मेल पार्टनर का वैसे हम स्पर्म प्रिजर्वेशन करते हैं. Right. अब स्पर्म प्रिजर्वेशन इसलिए करते हैं, फॉर एग्जांपल
देर आर स्पोर्ट्स पर्सन, हमारे यहाँ काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सनल हमारे अपने स्पर्म प्रिजर्वेशन के लिए आते हैं. राइट. टेस्टिकुलर इंजरीज जहाँ पे भी हमारे, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, राइट. इनमें टेस्टिकुलर इंजरीज होने के चांसेस होते हैं. राइट. तो वहाँ पे ये जो प्लेयर्स हैं, शिलोंग के काफ़ी क्लब्स के लिए प्लेयर्स, मेघालय इज हमारी स्पोर्ट्स हब है हमारे यहाँ, मणिपुर इज ए वेरी स्पोर्ट्स हब हमारे यहाँ. राइट. तो वहाँ से काफ़ी प्लेयर्स हमारे यहाँ के स्पर्म प्रिजर्व करके जाते हैं. एंड could early injuries also impact this? अर्ली इंजरीज स्पर्म की क्वालिटी डेफिनेटली डिटोरेट कर सकते हैं. टेस्टिकुलर इंजरीज अगर होती हैं तो स्पर्म की क्वालिटी डिटोरेट होती है. Because I think it's important for parents to know जिनके बच्चे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, they may not think towards it. क्लब्स भी हमारे काफ़ी अवेयरनेस आ रही हैं. हाँ. क्लब्स हमें काफ़ी इनवाइट करते हैं रिगार्डिंग टॉक्स, राइट. कि उनके जो उनके प्लेयर्स होते हैं, हाँ. उनको एजुकेट करने के लिए. राइट. एंड नाउ द डिफेंस पर्सनल्स, ओके. ये भी हमारे पास काफ़ी स्पर्म प्रिजर्वेशन के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ उनका जॉब बहुत डिमांडिंग होता है. यस. तो उनके भी टेस्टिकुलर इंजरीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. राइट. इनफैक्ट डिफेंस पर्सनल की बात कर रहा हूँ तो आई रिमेंबर देयर वाज ए टाइम अफगानिस्तान वार, अमेरिका हैज़ प्रपोज्ड ऑल इट्स डिफेंस पर्सनल, कॉम्बैट पर्सनल्स को आप अपने स्पर्म्स और एग को प्रिजर्व कर सकते हैं, एंड गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका राइट. will pay for all the fertility preservation treatment. So Got that was amount of dedication American government has shown towards their combat soldiers. Wow. And this is opening up a very different perspective for me, where we never think about the life of a footballer, an athlete, or defense combats or soldiers like this. उनको भी ये उनकी भी चिंता और कंसर्न हो सकती है. Okay. ये कभी हमारे ख्याल में भी नहीं आता. In fact, I feel they deserve much more better care than all of us. 100%. Yes. Yes. I केयर की बात करूँ तो आई रिमेंबर आज की डेट में ऑल ऑफ अस आर टॉकिंग अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस. हमारी फीमेल पॉपुलेशन इक्वली आज की डेट में एम्पावर हो रही है एंड कंट्रीब्यूटिंग इन द सोसाइटी more than males in many sectors. Right. But again we understand that कि इनके एक biological clock है, just now we discussed. So there are companies who are giving them, for example Microsoft, Apple, there are so many companies, multinational companies are there, Right. जो अपने employer को बोल रही हैं कि today if you want to work, Right. work, Yes. आप fertility preservation कराना चाहिए. We talked about the egg preservation. Yes. आप मैरिड नहीं हो, डोंट वांट टू मैरी, यू वांट टू फोकस ऑन योर कैरियर, यस गो अहेड, फोकस ऑन योर कैरियर. यू वांट टू प्रिजर्व योर एग्स, वी विल पे फॉर इट. देयर आर सो मेनी कंपनीज हु आर टेकिंग केयर ऑफ देयर कलीग्स कि आप काम पे फोकस करो. Yes. एंड आपकी फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन हमारी जिम्मेदारी. That's so reassuring to a woman, to a It is mother, to a reassuring. child, to a daughter. बैलेंस रखना ज़रूरी है. ये भी नहीं होना चाहिए कि एवरी गर्ल इज गोइंग फॉर प्रिजर्वेशन ओनली एंड फैमिली शुड बी डिलेइंग. Yes. ये भी नहीं होना चाहिए. Very conscious. वेरी कॉन्शियस एंड वेरी समझ के डिसीजन लेने चाहिए हाँ. कि हर एक की इंडिविजुअल सिचुएशन अलग अलग होती है. हाँ. ये मेरे नेबर ने कराया था इसलिए मेरे लिए भी ये ऑप्टिमम है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. Got that. एक Yes. बैलेंस Not देखा पर हाँ. कहाँ पे मेरे लिए क्या सुटेबल है, सही है. Yes. ठीक है. ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको कैसे सही तरीके से यूटिलाइज करना है ये हमें सोचना है. राइट. सो जो भी क्रायो बैंक्स होते हैं, क्रायो बैंक्स बोलते हैं, या बिल्कुल, दिस इज राइट. दे आर अवेलेबल एट योर इंस्टीट्यूट आल्सो. यस, वी आर डूइंग इट. फिल्म स्टार्स हमारे यहाँ काफ़ी क्रायो करके जाते हैं, डिफेंस पर्सनल हमारे यहाँ क्रायो करके जाते हैं, स्पोर्ट्स एथलीट्स हमारे यहाँ काफ़ी क्रायो करके जाते हैं. अनदर सेक्टर जहाँ पे हम क्रायो करते हैं कि कैंसर पेशेंट्स. ओके. कैंसर जो पेशेंट्स होते हैं, कैंसर बिफोर कैंसर पेशेंट्स, लेट मी बिफोर कैंसर. बिफोर कैंसर पेशेंट्स की अब बात करें, उसके पहले मैं बात करना चाहूँगा अच्छा. हाँ. कि कैंसर ट्रीटमेंट बहुत एडवांस हो चुका है आज की डेट में. राइट. कैंसर डज नॉट मीन डेथ. देयर वाज ए टाइम हम सोचते थे कैंसर हो गया किसी को मतलब दैट्स द एंड स्टेज. ठीक है. नहीं, अर्ली डायग्नोसिस अगर होता है हाँ. तो फिर उसमें हमारा ट्रीटमेंट एंड सर्वाइवल रेट्स आर वेरी वेरी गुड. जैसे हमने पहले बात की एंजेलिना जोली की, शी हैड ए पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर. राइट. तो उन्होंने अपना एक प्रिकॉशनरी लिया.
अगर अर्ली स्टेज में कोई भी कैंसर, बहुत सारे कैंसर, आई वोंट से कोई भी कैंसर, बहुत सारे कैंसर्स अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होते हैं, राइट, 100% क्योर भी हो सकते हैं. ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ द कैंसर यस, जहाँ अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोसिस हो जाता है हाँ, तो क्योर हो सकता है. क्योर हो सकता है. टुडे एवरी डे वी टॉक अबाउट सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन. आई एम श्योर आप लोग सबने सुना होगा सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन एंड सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में. यस, वहाँ पे अर्ली अगर डायग्नोसिस होता है तो उसमें क्योर भी हो जाता है, कंप्लीट क्योर हो जाते हैं चीज़ें. राइट, लेकिन अगेन द की वर्ड इज अर्ली स्टेज. अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस करने के लिए आपको रेगुलर चेकअप करने पड़ते हैं, जो कि कई बार हम नहीं कर पाते. अब पेशेंट का डायग्नोसिस भी हो गया और हमने उनका ट्रीटमेंट भी कर दिया. वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इन फॉर्म ऑफ अगर हम करते हैं रेडिएशन देते हैं या फिर कीमो देते हैं, राइट, तो ये रेडिएशन एंड कीमो से आपके एग्स एंड स्पर्म भी डैमेज हो जाते हैं. ओके, आपने सर्वाइव तो कर लिए, राइट, ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट भी हो गया, राइट, लेकिन आप लाइफ लॉन्ग के लिए इनफर्टाइल हो गए. होता है, वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस ट्रीटमेंट्स, यस, कीमो देते हैं या फिर रेडिएशन देते हैं. तो व्हाट वी आर डूइंग नाउडेज कि आपको अगर कैंसर डायग्नोसिस हुआ है, बिफोर यू गो फॉर द कीमो और रेडिएशन ट्रीटमेंट, राइट, आप अपने अंडे या स्पर्म हमारे पास प्रिजर्व कर सकते हैं. Got अब वंस यू आर क्योर्ड, Right. आप कैंसर से क्योर जब हो जाते हो, हाँ, तो फिर ट्राई नेचुरली, प्रेगनेंसी हो गई वेल एंड गुड. राइट, अगर नहीं होती है तो आपके अंडे या स्पर्म हमारे पास प्रिजर्व हैं. राइट, लेट अस ट्राई फ्रॉम दैट. डज नॉट गिव यू 100% गारंटी, बट इट इज़ ए वैलिड ऑप्शन. और उस केस में अगर ये मैरिड कपल है तो एम्ब्रियो भी अपना हम प्रेफर जो कर प्रीवियस सकते हैं. भी कर सकते हैं. दैट्स अ न्यू लर्निंग. I will give you two examples, one successful example and one failure example. That is yesterday one case came to us. राइट, One case I will tell you long back, almost 10 years back. हाँ, Patient had cancer in the knee joint. ठीक. Patient came, she was a healthcare professional only. Patient came with the amputation, above knee amputation हो गया था. And उनका further कुछ कीमो एंड रेडिएशन स्टार्ट करना था oncologist को. एंड उन्होंने हमें 10 दिन का टाइम दिया था. अनमेरिड हेल्थ केयर प्रोफेशनल थी वो, ठीक है, कि सर इनका 10 डेज़ के लिए, 10 या 15 डेज़ के लिए आपको हम टाइम देते हैं, राइट, एंड उसमें इसके बाद हमें इनका फर्दर ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट हो गया लेकिन Right. फर्दर ट्रीटमेंट हमें स्टार्ट करना पड़ेगा. राइट, वी 10 days we took out her egg, preserved it, and after that she was completely cured of her cancer. Conceived first pregnancy, conceived naturally. सेकेंड प्रेगनेंसी में उनको डिफ़िकल्टी आ रही थी, उनके अंडे हमने निकाले जो हमने प्रिजर्व किए थे. वी गेव देम बेबी. दैट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर अस. नाउ यस्टरडेज केस, यंग बॉय, 17-year-old or 16-year-old boy came to us. He was diagnosed to have some cancer. Came with a mother and father. Everybody was sickened. Obviously, suddenly आपको एक यंग बच्चे को कैंसर डायग्नोसिस हो गया. डॉक्टर गेव देम ऑप्शन कि इनका हम ट्रीटमेंट करेंगे, इनसे स्पर्म का डैमेज हो सकता है, राइट, तो आप इसको प्रिजर्व करा सकते हैं. कपल केम टू अस, वी टुक ऑल द नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस एंड द कंसेंट फॉर्म. लास्ट मोमेंट बच्चा बोला नहीं सर मैं नहीं जाना चाहता. एंड ही वाज लिटरली, कल की बात है, लिटरली कल हमारे पास पेशेंट था ये. ही वाज नॉट एबल टू गिव हिज सीमेन सैंपल. एंड मदर वॉज क्राइंग, फादर वॉज क्राइंग, एंड द सन वॉज क्राइंग कि नहीं देखेंगे बाद में जो होगा देखूंगा, अभी तो मेरे को यहाँ से जाना है. दे वर सो इमोशनली नॉट रेडी. तो अभी तो हम नहीं करेंगे. सब कुछ हो गया, सारे इन्वेस्टिगेशन करा लिए. हाँ, मदर वॉज क्राइंग ऑल थ्रू आउट. लास्ट 2 days दे वर कमिंग, डे फॉर यस्टरडे दे केम. मदर वॉज क्राइंग ऑल थ्रू आउट. राइट, Yesterday, father was crying, son was crying, and they came and they left. तो यहाँ पे भी हमारे पास डिफ़िकल्टीज होती हैं. यहाँ पे इमोशनल काउंसलिंग इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है. right. Infertility and cancer, is there something else to add to this topic? Every cancer patient who is going for the cancer treatment must explore possibility of fertility after cancer. They must know cancer treatment can affect Right, their fertility, in future fertility. right, So fertility preservations are options are available for both male as well as for the female partners. right. ये सबको अवेयरनेस होनी चाहिए. ऑन्को सर्जन्स, ऑन्कोलॉजिस्ट आर गेटिंग मोर एंड मोर अवेयर अबाउट दिस थिंग्स, एंड दिस मस्ट बी डिस्कस्ड अलोंग विथ योर ऑन्कोलॉजिस्ट. ये इम्पॉर्टेंट है. नहीं, इम्पोर्टेंट है.
and any other nuances around infertility, cancer, or the reproductive system and cancer, anything you would want to add to that topic? नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें ऐड ऑन नहीं करूँगा, चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, ठीक। लेकिन अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे नहीं हैं आज की डेट में, इन फ्यूचर में आप चाहते हो, आप यंग हो, बच्चे नहीं हैं, फ्यूचर में ऑप्शंस रखना खुला रखना चाहते हो, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन इज़ ए वैलिड ऑप्शन। राइट। ऑन्कोलॉजी अपने ऑन्को ट्रीटमेंट जो डॉक्टर आपके ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको भी बताओ। आज की डेट में हम अपनी ड्रग्स को भी मॉडिफाई करते हैं, जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो अपनी कीमो को भी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते हैं कि जो ड्रग्स आपकी ओवरी को कमती अफेक्ट करें। सर्जरीज भी हम वैरायटी ऑफ सर्जरीज भी करते हैं ड्यूरिंग कीमो, वैरायटी ऑफ एक्स्ट्रा मेडिसिन देते हैं ताकि आपके अंडे प्रिजर्व रहे। Right. तो वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल, सो प्लीज डिस्कस। Yes. So That the is important. word is please discuss. यस Got that. Recurrent pregnancy losses is a very emotional topic. यस यस दीपिका, आज की डेट में ऑलमोस्ट यू कैन से 4 to 5% ऑफ द कपल्स Right. सफ़र फ्रॉम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेज मतलब हो गया प्रेगनेंसी हो रही है लेकिन मिसकैरेज हो रहा है, घर नहीं जा रहा बच्चा हमारा। प्रेगनेंसी होने में दिक्कत नहीं है लेकिन प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो रही, पूरे 9 महीने तक कंटिन्यू नहीं हो रही। तो कई बार हम इसको बोलते हैं 2 बार अगर बच्चे का लॉस हो गया, प्रेगनेंसी लॉस हो गई, तो उसको भी बोलते हैं, सम यूरोपियन कंट्री सेज 3 टाइम्स, Right. some countries says 2 times. Let's not go into that technical debates. अगर प्रेगनेंसी हो रही है, बच्चा घर नहीं जा रहा, इम्पॉर्टेंट है। 3 to 4 up to 5% of the couple face this problem. We have to identify correctly कि क्यों ऐसा हो रहा है। Is it because of some structural problem? Is it because of some hormonal problem? Or is it because of some genetic problem? Okay. So प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन अगर हो जाता है हाँ. तो उसका हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। 60 to 70% मिसकैरेज होते हैं बिकॉज ऑफ बच्चा अगर हमारा जेनेटिकली अनहेल्दी होता है। Genetically, 60 to 70% we will account to genetics. जेनेटिक्स। ठीक है. दीपिका, व्हेन यू वर डिलीवर्ड, Right. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज फर्स्ट क्वेश्चन योर पेरेंट्स आस्क्ड? Boy है ये, girl है. हमने बता दिया हाँ. कि लड़की हुई है। Right. व्हाट डू यू थिंक वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Is she healthy? एग्जैक्टली, इज शी हेल्दी? Yes. When I was born, same question was asked by my parents. What did you ask when you, how many kids you have? I have 2 girls. You have 2 girls. When first girl was born or second girl was born, what did you ask? Did you ask the same question? I- Healthy है? Healthy है. Yes. मैंने भी यही पूछे थे। Yes. How is mother? How are the baby? Right. Huh? Right. Why do we ask all this question? All of whatever my educational background, whatever your educational background, whatever your parents' educational background or social circumstances, Right. all of us ask same question. Yes. Why do you think that? Genetics. No, और जेनेटिकली, और कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड में हमारे पास रहता है कि हमारा बच्चा हेल्दी है कि नहीं है। हाँ. ये भी हम एक्सेप्ट करते हैं, हम बोलते नहीं हैं लेकिन एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे किसी भी बेबी को कोई भी प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। Right. हम एक्सप्रेस नहीं करते। हाँ. हम fear देखते हैं रहता है. सोसाइटी में कुछ Hidden fear रहता है. हिडन है, फियर रहता है वो। हाँ. हम सोसाइटी में देखते हैं सम बच्चे मेंटली थोड़े से चैलेंज्ड होते हैं, हाँ. किसी बच्चे के होंठ कटे हुए हैं, किसी बच्चे के हाथ में छेदे हैं, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती Yes. है। Yes. एंड वी ऑल प्रे टू गॉड कि हमारे बच्चे को नहीं हो ये प्रॉब्लम। Right. दिस इज़ वाई वी आस्क कि सब ठीक है ना। समटाइम वी आस्क एक सब ठीक है ना, मदर ठीक है, बेबी हाँ. ठीक है। हाँ. वी ऑलवेज आस्क दिस। Yes. The chances of having these problems in any pregnancy is only 3 to 4%. लेकिन इनिशियली मैंने बोला मिसकैरेज में जो होते हैं 60% 60 count to करता है ये. 70% काउंट करता है। Hmm. मोस्ट ऑफ द अनहेल्दी प्रेगनेंसीज, इससे नेचर्स वे टू प्रिवेंट अनहेल्दी बेबीज। So 3 to 4% है और 60% है. सारे मिसकैरेज हो जाते हैं बीच में। इनिशियली जो अनहेल्दी प्रेगनेंसी थी, 3 to 4% are the disabilities or the special conditions, स्पेशल कंडीशन जो सर्वाइव कर जाते जो हैं, survive कर जाते हैं. मिसकैरेज नहीं होते हैं, और बाकी सारे नेचर्स वे ऑफ प्रिवेंटिव Filtration है. फिल्ट्रेशन है ये। ठीक तो इनिशियली हमें उस वक्त बहुत ख़राब लगता है हाँ. कि हमारी प्रेगनेंसी ख़राब हो गई, ठीक है. लेकिन इट्स अ नेचर्स वे टू प्रिवेंट अनहेल्दी बेबी। अंडरस्टूड. वी लुक फॉर ए हेल्दी बेबी। यस. अगर किसी को रिपीटेडली मिसकैरेज हो रहे हैं, हाँ. दैट्स द सिचुएशन वेयर वी वरी। ओके. तो फिर वहाँ हम फॉर द हम्म. उसमें डीप इन्वेस्टिगेशन करते हैं हाँ. टू आइडेंटिफाई कि एक बार हो गया, वी अंडरस्टैंड यस.
कि इट वाज ए मिसमैच हो गया, स्पर्म और अंडे आपस में ठीक से मिले नहीं, ठीक है, तो मिसमैच हो गया। ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एवरी टाइम हमारे स्पर्म डिफेक्टिव हो रहे हैं, या एवरी टाइम हमारे अंडे डिफेक्टिव हो रहे हैं, हमें कोई डिफेक्ट जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्रिएट करते हैं राइट, कि आइडेंटिफाई करते हैं कि कहीं जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है कपल में। ओके, अगर कपल में जेनेटिक प्रॉब्लम होती है हाँ, तो आज की डेट में आईवीएफ से हम पहले से फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, वी विल गिव देम ओनली द हेल्दी एम्ब्रियो, ओके, एम्ब्रियो बना के उनकी हम जेनेटिक टेस्टिंग कर लेते हैं। ओके, अच्छा, दैट्स पॉसिबल, दैट्स पॉसिबल। ऑलराइट, तो एक सर्टेन लिमिटेड सेक्टर है, हाँ, वेरी स्पेशलाइज कपल्स आर देयर, राइट, जहाँ पे इन रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस के कपल को भी हम थ्रू आईवीएफ हेल्दी प्रेगनेंसी हम दे सकते हैं। ओह दैट्स ब्यूटीफुल। सो आपने एक एंगल बोला ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस, एक एंगल जहाँ मिसकैरेजेस हो रहे हैं, जहाँ फीटस में जेनेटिकल इश्यूज हैं, एंड दैट्स अ नेचर्स वे ऑफ ड्रॉपिंग दैट आउट। यस एग्जैक्टली, एंड सेकंड है जहाँ पेरेंट्स में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, एंड देन दे कैन ऑप्ट फॉर आईवीएफ IVF एंड द हेल्दी एम्ब्रियोज कैन बी इम्प्लांटेड। इम्प्लांटेड। ब्यूटीफुल, ठीक है। फिर देन आपने बताया, मेंशन किया स्ट्रक्चरल, राइट, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस में कई बार यूट्रस की शेप गड़बड़ होती है, तो वहाँ हम सर्जरी करके यूट्रस को करेक्शन कर सकते हैं। राइट, अगर इज इट कॉल्ड फेलोपियन टाइप ट्यूब करेक्शन? नो, इससे यूट्रस में होती है यूजुअली, यूट्रस, यूट्रस में मुलेरियन डिफेक्ट्स बोलते हैं हम लोग। हाँ, मुलेरियन डिफेक्ट्स हैं तो उसको हम करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, थायराइड की प्रॉब्लम से भी मिसकैरेज होते हैं, ठीक है, तो थायराइड की प्रॉब्लम करेक्ट कर सकते हैं। डायबिटीज़ से भी मिसकैरेज होते हैं, तो डायबिटीज़ को करेक्शन करके फिर हम पेशेंट कपल को बोलते हैं कि ट्राई फॉर Okay. प्रेगनेंसी। सो दीज ऑल कम अंडर स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल हो गया, हार्मोनल हो गया, एंडोक्राइनोलॉजिक हो गया। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड। सो देर आर मेथड्स टू Yes. प्रिवेंट लॉसेस, प्रिवेंट एंड करेक्ट करेक्ट, प्रॉब्लम्स। got that. This must be very reassuring to couples who are going through similar issues. यस, I would want to add an anecdote here. मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या था, बट माई मॉम, शी इज़ नो मोर, बट शी कंसीव्ड अस आफ्टर 13 years of their marriage, मम्मी एंड पापा, and we both were cesarean, me and my brother. It's a very personal story I'm putting out there. And we only got to hear about us that we were very treasured, first of all. And second, we heard that one doctor in Chennai could identify gynec that mummy had some fallopian tube corrections, if I'm not wrong, that is the term, or there were some structural corrections in the uterus. And that's it. That's all that was needed. And then she conceived us beautifully. And I must be thankful to the doctor wherever she is now. प्रॉपर डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. डायग्नोसिस हो जाता है तो हमारे लिए ट्रीटमेंट बहुत ईजी हो जाता है। Right. एक और यहाँ पे आप डू सी मूवीज़? I do. Yes. आई लव सीइंग मूवीज़। Right. मैं बहुत पिक्चरें देखता हूँ मैं। हाँ, कभी खुशी कभी गम देखी है आपने? हाँ, क्या देखा उसमें आपने? जया इनफर्टिलिटी था, जया बच्चन एंड अमिताभ बच्चन हाँ. हैड सफर्ड फ्रॉम इनफर्टिलिटी। right. उन्होंने शाहरुख खान को अडॉप्ट किया Yes. और ऋतिक रोशन आ गया। Right. हाँ, देखा आप? देखा है. Yes. ये रियल लाइफ में हम एवरी वीक में कम से कम एक कपल को देखता हूँ मैं। Okay. हाँ, ठीक है. एवरी कपल को क्यों होता है ये? पहली प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टी होती है, एक बच्चा आ गया घर में हाँ, एंड नेक्स्ट बेबी स्पॉन्टेनियसली होता है। आई एम श्योर आपने भी सुना होगा, पहली प्रेगनेंसी में बहुत स्ट्रगल हुआ, right. नेक्स्ट प्रेगनेंसी Yes. आराम से हो गई। Yes. यहाँ पे सोसाइटल प्रेशर या अपने खुद के ऊपर जो प्रेशर कपल अपने पास रखते हैं, वो प्रेशर ख़त्म हो जाता है। एक बच्चा घर में आ गया तो प्रेशर ख़त्म हो गया, Yes. हार्मोन्स कंट्रोल में आ गए Right. एंड सेकंड बच्चा अपने आप हो गया। So it's a lot about the stress that we take Stress. home, mentally, knowingly, unknowingly. बिल्कुल, Great. जो हमने शुरू में बात की ना, फिर आ गया, हाँ, वो भी स्ट्रेस क्रिएट करता है। Yes. फिर पहला आगे बच्चा फिर घर में stress. आ गया तो मदर इन लॉ भी बोलना बंद कर दी, फिर आ गया, Right. आपने भी अपने ऊपर प्रेशर कमती कर दिया Yes. और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में हार्मोन्स कंट्रोल रहे और Right. अपने आप प्रेगनेंसी हो गई। And just on a lighter note, I think people conceive more during holidays because Yes. they are at ease, they are having a stress-free time. सिंगापुर प्रेगनेंसी, Yeah. दैट्स बिकॉज वन ऑफ माय फ्रेंड, Yes. क्लोज फ्रेंड, बहुत ट्रीटमेंट किया था मैंने, हाँ. नहीं हुई प्रेगनेंसी Right. एंड दैट वाज बिगनिंग ऑफ माय कैरियर। हाँ. आई थिंक नाउ तो उनके बच्चे भी 20-25 साल के हो गए ठीक है. एंड देन दे लेफ्ट फॉर सिंगापुर। बोले दीपक अभी और ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, अभी थोड़ा सा गैप देते हैं। ठीक है. सिंगापुर गए, नेक्स्ट मंथ उनको मेंसेस नहीं आया एंड वी टेक्स एंड प्रेगनेंसी हो गई। सिंस दैट टाइम
I call this Singapore pregnancy. This is the This is terminology, from the personal Singapore pregnancy. Singapore pregnancy. So couples should, before delving into or rushing into it, they should try Singapore Vacation. pregnancy. बिल्कुल. Vacation. बिल्कुल वैकेशंस आर इम्पॉर्टेंट. Right. स्ट्रेस हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा हो गया है. बेसिकली वैकेशंस मीन्स क्या है? हम अपना एक स्ट्रेसफुल लाइफ से एक ब्रेक ले रहे हैं. Yes. That's it. That's it. Yes. Got that. आइडियल टाइम प्रेगनेंसीज के काफ़ी डिस्कस्ड हैं, काफ़ी डिबेटेड हैं. आपका टेक क्या है? Before 32 pregnancy, family should become बिफोर 30. 32. 30. Female partner की एज before 32, family should complete. Family should complete. We can debate on this a lot, but this is my personal. This is a test. This is a line that you're giving out. Yeah. That's a conclusion. We're not debating my it. personal take हाँ. कि before 32 अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है Yes. तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको. No. लेस लाइकली कि आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी. Noted. Point noted. बहुत कुछ डिबेट हो सकता है इसके ऊपर कि मैं सही भी हो सकता हूँ मेरे ऐसे स्टेटमेंट में, मैं गलत भी हो सकता हूँ. लेकिन बायोलॉजी, हमारी ह्यूमन बॉडी की बायोलॉजी जिस तरह से काम करती है, बाय द एज ऑफ 32 आपको एक बेबी चाहिए, 2 बेबी चाहिए. डिसाइड, प्लान, Right. एंड अगर कर सकते हो तो डू इट. इफ़ यू कैन डिले इट, इफ यू हैव टू डिले इट, देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. लेकिन इफ इट इज़ फिजिबल फॉर यू बिफोर द एज ऑफ 32, फीमेल पार्टनर, Right. फैमिली शुड बी कंप्लीट. मैंने लिख रखा था अपने गोल्स लिस्ट में कि बिफोर आई हिट 30 आई शुड फिनिश माई फैमिली. एंड ऐसा हुआ कि मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी, अगेन अ वेरी पर्सनल स्टोरी आई एम पुटिंग आउट. Doctor had seen 2 fetuses, and then I came to consult you. I don't know if you remember this. No, I don't remember. And we were confused at that stage कि it's a second child and 2 fetuses. Any parent logically would be थोड़ा सा कंसर्न रहेगा. concerned रहेगा. And then we discovered a new term called vanishing twin. And today we laughingly I tell my younger one that, see, you are a vanishing twin, you are the lucky one for me. So that time when we had so much of pressure, I can just imagine that वो तो उसके अलावा भी और कितने तरह के प्रेशर्स आज आपने एक पेरिफेरी पे हमारे साथ हमने स्क्रैच किया है ऑडियंसेस के लिए. वी कैन नॉट इवन इमेजिन द काइंड ऑफ इमोशनल stress, financial burdens, or any kind of taboos, stereotypes that couples and maybe more importantly female counterparts go through. बहुत फीमेल काउंटर पार्ट को आज भी बहुत सफ़र करना पड़ता है. इनफैक्ट मेडिकली हम बोलते हैं 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स लाइज इन द मेल पार्टनर, 50% प्रॉब्लम लाइज इन द फीमेल पार्टनर, Right. एंड 90% ऑफ द बर्डन इज कैरीड बाय द फीमेल पार्टनर, विच इज़ सो अनफेयर, Unfair, yes. वेरी वेरी अनफेयर. जहाँ 50-50 है वहाँ 90% आप फीमेल Female काउंटरपार्ट partner को बेयर करना पड़ रहा We है. have seen couples in certain societies. I have seen a couple, third marriage. हस्बैंड को स्पर्म थे ही नहीं. हस्बैंड को स्पर्म थे ही नहीं. Right. उसने पहली शादी की, बच्चे नहीं हुए. Hmm. फिर दूसरी शादी की, Right. बच्चे नहीं हुए. Right. तीसरी शादी की, बच्चे नहीं हुए. फीमेल पार्टनर को इन्वेस्टिगेट करते थे, मेल पार्टनर को Investigate ही इन्वेस्टिगेट. नहीं करते थे. मेरा लड़का तो परफेक्ट है, मेरे लड़के को तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती. Right. आई एम ए मेल मेंबर, मेरे को तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती. ये अभी भी है, पहले से बहुत कमती हो गया, लेकिन इट्स नॉट दैट इट हैज़ टोटली डिसअपियर्ड. नहीं, आज की डेट में एवरीबॉडी इज़ कंट्रीब्यूटिंग Right. एंड एवरीबॉडी शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़. हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से डिनाई करें या फिर उसको अवॉइड करें, दैट्स नॉट फेयर. Understood. दैट्स नॉट ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप. Understood. And how do you think it can be, the whole ecosystem can be supported better? एजुकेशन, Education. सिंपल वर्ड है. Education के साथ responsibility. एजुकेशन है तो फिर उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी आनी पड़ेगी. रेस्पॉन्सिबिलिटी तो चाहिए कि चाहिए. एजुकेट होके भी कई बार हम रेस्पॉन्सिबल नहीं बनते. Yes. रेस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी. एजुकेट करो अपने आप को कहाँ पे प्रॉब्लम है, Right. एंड फिर टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी. Got that, sir. Some common myths. Top myths क्या है जो आप हर दिन सुनते हैं अपने क्लिनिक में अब when you're consulting? एक तो हमने अभी डिस्कस किया, फीमेल पार्टनर की प्रॉब्लम हाँ. होती है. हाँ. रिगार्डिंग IVF कॉमन मिथ्स, बहुत पेनफुल होता है. Okay. नहीं, IVF इज़ नॉट पेनफुल. इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, लेकिन दीज इंजेक्शंस आर नॉट वेरी पेनफुल. जस्ट लमसम, ब्रॉडली ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं.
बेड रेस्ट IVF करने से आपको पूरे 9 महीने बेड रेस्ट रखना पड़ता है। राइट। लेट मी टेल यू, लास्ट 25 ईयर से मैं IVF कर रहा हूँ। IVF करने के बाद एक भी पेशेंट को मैंने बेड रेस्ट आज तक एडवाइस नहीं किया। कपल पेशेंट्स डू टेक बेड रेस्ट ऑन देयर ओन। यस। उन्होंने अपने पड़ोस में देखा बेड रेस्ट लेते हुए। राइट। फॉरगेट IVF, मैंने ऐसे भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मैं कभी भी किसी को भी बेड रेस्ट एडवाइस नहीं करता। इट्स Right. नॉट यूजफुल राइट। except in particular rare circumstances, usually it is not useful. So bed rest की ज़रूरत नहीं होती, IVF पेनफुल नहीं होता। एंड आफ्टर डिलीवरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एवरी डे दैट्स माई एवरी डे रिपीटेशन। जो हम मारवाड़ी कम्युनिटीज़ में हम बोलते हैं जापा, बट इट इज़ देयर इन एवरी कम्युनिटी, एवरी इंडियन कम्युनिटी, राइट। irrespective of the region, irrespective of the caste. आफ्टर डिलीवरी हम बहुत ज़्यादा खिलाते हैं कि अच्छे से खाना चाहिए। लॉट ऑफ घी इज़ गिवन। यस। कपड़े चेहरे पे बांध के रखते हैं, ब्रश नहीं करने देते। हाँ, वो बहुत पानी सारे, नहीं पीने देते पानी ज़्यादा। नहीं पीने देते, बहुत सारे कुछ है। लेट मी टच ओनली अबाउट द न्यूट्रिशन। यस, हेल्दी न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट, बट डज नॉट मीन आप उस बच्ची का वज़न 10 kg बढ़ा दो। सम टाइम आई हैव सीन, अगर नहीं खिलाएंगे तो बच्ची की माँ हमें बोलेगी अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रखा। ये भी हमने बहुत बार सुना है। यस। Mother-in-law feeds the son, daughter-in-law, राइट। just to prove that she is I've taking taken care of my son, my daughter-in-law. यस। नहीं, ऐसा नहीं है। मे बी आप- शायद वो एक बहुत पुराने इकोसिस्टम से आ रहा है जो बदला नहीं है। बदला है। जब स्कैरसिटी होती थी बिल्कुल। और जब थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर दिया जाना ज़रूरी समझा जाते थे, उसको ओवर यूज़ हो गया है। ओवर यूज हो गया। पहले की प्रॉब्लम क्या होती थी? देयर वाज ए टर्म, द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, कमाऊ मर्द। यस। मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली खेतों में जाते थे एंड यूज टू वर्क। फीमेल मेंबर्स घर में रहते थे। एंड हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन भी, पूरी इंडिया की बात करूँ तो आज से 50 साल पहले इकोनॉमिक सिचुएशन वाज टोटली डिफरेंट। घर में जो भी खाने के लिए आता था, हाँ। पहले अर्निंग मेंबर्स को मिलता था, राइट। बचा खुचा फीमेल मेंबर्स को मिलता था। हालांकि फीमेल मेंबर्स भी खेतों में जाती थी और घर में चक्की चलाती थी, लेकिन एक टैबू था टैबू था। कि Yes. जो बचा खुचा है वही पहले फीमेल बेटे को मेंबर्स को लेंगे। मिलेगा। हाँ। पोस्ट डिलीवरी यूज टू टेक द एडवांटेज, एक अपॉर्चुनिटी की इस बहाने फीमेल मेंबर को खिला दिया जाए। राइट। इज इट द सेम सिचुएशन टुडे? नो, वे ओवर। फीमेल मेंबर भी डाउन द ईयर खाती हैं, यस। जितना खाती हैं उतना ही मेल मेंबर खाते हैं, उतना ही फीमेल मेंबर खाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेल मेंबर को खिला के जो बचा है यस। वही हम फीमेल मेंबर को नहीं। देंगे, ऐसा नहीं है। नहीं है अब। तो आपको फीमेल मेंबर को एक्स्ट्रा खिलाना है तो फिर उनसे चक्की भी चलाओ और खेतों में काम भी कराओ। तो वो तो बर्न digest नहीं हो, यस। तो वो तो होता नहीं है। हाँ। और फिर भी क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर अपने घर के मेंबर्स के लिए। This was very well taken care for me to a very greater extent, as I consulted from my first pregnancy itself to a dietitian under your hospital, your institute, Miss Munmun Ganeriwal. The way in which beautifully she guided me, my mother-in-law, my family, about what's needed, about guiding towards the routine things that we should take care of, eat very choicefully, drinking water, breaking a lot of taboos. I'm very grateful for, first of all, your institute to provide that provision, and help us in our journeys. Munmun is no longer there in the she's not there. Aisha. I know. She has shifted to Mumbai. Right, yes, I'm aware of that. But her journey began with you. Yes. Yes. And there are other dietitians are still there. Yes. Dieting never means just a carry home message. Dieting does not mean कि आपको अपने meals skip करने हैं. No. Don't skip your meals. That's a bad thing to do. Stay under the supervision of dietitian. They will give you guidance for a balanced diet, which should contain even the butter also, Yes. ghee also, everything. Balanced diet constitute everything. Right. प्रॉपर मिनरल्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें। वो बैलेंस है। हम जहाँ बैलेंस नहीं रख पाते वहाँ हमारे गड़बड़ हो जाता है। सो डाइटिशियंस आर द गुड कम्युनिटी जहाँ पे वो हमें हेल्प करते हैं। Got that. एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आई डोंट नो इफ इट्स वैलिड और एल्स विल क्लिप इट लेटर। मल्टीविटामिन्स, ऐसा एक रहता है मिथ, इंटरनेशनली मंगाओ ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्वालिटी यूएस से मंगाओ। आप कहीं से भी मंगा लो, आपको कहीं से भी मंगाई हुई किसी भी मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है।
कहीं से भी मल्टीविटामिन मंगाने की आपको जरूरत नहीं। ज़रूरत नहीं है। हाँ। आप घर के दाल चावल खाओ ना, हाँ। दे विल प्रोवाइड यू सफिशिएंट मल्टीविटामिन्स। ठीक है। स्टॉप काउंटिंग कैलोरीज एज सच। हाँ। आप अपने घर का न्यूट्रिशियस फूड खाओ, Yes. डोंट नीड एक्स्ट्रा सप्लीमेंट। अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाओ Yes. इन ए प्रॉपर क्वांटिटी, ओवर पोर्शंस भी मत करो, Right. एंड यू डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा विटामिन। एक्सोजिनियस बाहर से लिया हुआ कोई विटामिन की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर घर के खाने आर द बेस्ट विटामिन्स। Understood. Noted. Here, most of the basic questions that we had are covered. Any question around teenager health, teen children? Yeah, we don't delve into it. वी डू डील विद टीन चिल्ड्रंस। Hmm. टू थिंग्स, टीन चिल्ड्रंस के बारे में 2 चीज़ें बात करना चाहूँगा। Right. एक तो बेसिक हेल्थ, Hmm. खेलो, बहुत खेलो, आउटडोर गेम्स भी खेलो, इंडोर गेम्स भी खेलो, पिज़्ज़ा हट भी जाओ, लेकिन लिमिट करो। अपनी डाइट का ख्याल रखो Right. और खेलो और बहुत पढ़ाई करो। स्क्रीन टाइम को लिमिट करो। हाँ। दिस विल प्रिवेंट सो मेनी प्रॉब्लम्स। Screen time को prevent करो। स्क्रीन टाइम को प्रिवेंट करो, कंट्रोल करो। आई वोंट से Control करो। प्रिवेंट करो, हाँ, कंट्रोल करो। control करो। ठीक है। एंड पिज़्ज़ा हट भी जाओ, कोई बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है हाँ। कि आप बाहर जाके जंक फूड या नहीं खा सकते, बिल्कुल भी नहीं खा सकते। Right. ठीक है, आज की डेट में हमें सब चीज़ की एक बैलेंस रखना ज़रूरी है। वो बैलेंस रखना इम्पॉर्टेंट है, एंड खेलना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हम कहीं ना कहीं खेलना भूल गए। बट आई सी एवरी डे क्लास 10 के सुबह से शाम तक तो स्कूल में रहते हैं, सुबह शाम को ट्यूशन हो जाती है, फिर दूसरी एक ट्यूशन का दूसरे ट्यूशन में चले जाते हैं। Yes. खेलते कब हो आप लोग? संडे को एक दिन बाहर निकलते जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पे खेलना नहीं। वहाँ पे भी खेलना नहीं होता। Right. So, तो सब कुछ करते हैं, एजुकेशन को लेके भी कॉन्शियसनेस है, लेकिन खेलने को, फिजिकल एक्टिविटीज़ को लेके कॉन्शियस नहीं है। सो दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग रिगार्डिंग दैट्स मच मोर सीरियस नो, बच्चों में भी कैंसर होता है। right. और बच्चों में भी हम आज की डेट में ओवरीज के पोर्शंस को काट के प्रिजर्व कर लेते हैं। अच्छा। Okay. उनमें अंडे बनने शुरू ही नहीं होते, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, Right. तो हम अंडे को भी प्रिजर्व नहीं करते। जब अंडे बन ही नहीं रहे हैं, अंडे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट Start ही ही नहीं हुआ है। हाँ। तो उसमें अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया, सपोज ब्लड कैंसर सा कॉमन इन बच्चे, Right. ब्लड कैंसर हो गया तो उनको कीमो देना है। हाँ। तो कीमो देने से पहले हम ओवरिन के टिश्यू हम्म। हम प्रिजर्व करते हैं। अच्छा। इवन दैट इज पॉसिबल टुडे। And can we talk a little more about this science? ये क्या है? ओवरिन क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं इसको हम हाँ। लोग। एंड लिमिटेड, बहुत लिमिटेड एक रिक्वायरमेंट होती है, ओनली इन दोज बच्चे जहाँ पे अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कैंसर हो गया Right. और उनका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हुआ। Okay. तो बहुत लिमिटेड जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड ये होता है। माई सेल्फ एंड माई वाइफ रश्मि, वी वेंट टू Switzerland. We had our training long back, almost 5-6 years back. Yes. Since 5-6 years back, rarely we do get, I won't say every day we are getting Mhm. patient. Rarely we are getting patients, and we are doing it. Over India, very few ovarian tissue cryopreservation हम कर रहे हैं। पर अवेयरनेस ज़्यादा होने से शायद ज़्यादा होगा। Maybe, Maybe. yes. So नई टेक्नोलॉजी है, हाँ। लास्ट 10-15 ईयर से अवेलेबल है हमारे पास। हाँ। हमारे पास मतलब वर्ल्ड कम्युनिटी में, Right. एंड गुवाहाटी में भी हम कर रहे हैं। सो अगर बच्चों में किसी में होती है तो ये ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए हमें। And for the boys? बॉयज़ के लिए बिफोर द टीनेजर हाँ। वी डोंट हैव मच थिंग टू डू। Okay. वंस उनमें प्यूबर्टी अचीव हो जाती है, Only. देन वी कैन प्रिजर्व द सीमेन, स्पर्म को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। और ओवेरियन टिश्यू जो क्रायो प्रिजर्वेशन में यूज़ किया जाता है, टेक्निकली उसको वापस कैसे यूज़ करते हैं साइंस में? इनको वापस हम ओवरी में वहाँ पे इम्प्लांट करते हैं। ठीक है। सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, दोनों ही सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं। हाँ। ओवरी को निकालना भी सर्जिकल प्रोसीजर होता है, हाँ। और वापस उसको इम्प्लांट करना भी सर्जिकल है। प्रोसीजर होता है। पेट नहीं काटना पड़ता, राइट। विद द हेल्प ऑफ लेप्रोस्कोपी वी डू इट। ठीक है। वापस उसको वहीं पर बना देते हैं, फिर वहाँ पे नेचुरली वो एग डेवलप करते हैं, उसके थ्रू नेचुरली प्रेगनेंसी भी पॉसिबल होती है, ओके। या थ्रू आईवीएफ भी पॉसिबल होती है। सो देयर आर चांसेस chances आते हैं। cancer children, Yeah. children who are having cancer in their later stages of life, if they are stable, they can conceive. Yes, Okay, that's a very little known, very little known, very little known. very little known about it. Yes. Yes. This is very beautiful to hear this, that science has developed so much and the common man should be aware. Should be. इसके ये सब possible है आज साइंस के थ्रू। We shift gears into lab work.
patients talk about doctors but rarely about labs. What determines success inside an IVF lab that people don't see? Laboratory is basically soul of any IVF clinic. We are the face, we clinicians are the face. We take lot of clinical decision. हमारे clinical decisions implement होंगे सही तरीके से, ये डिसाइड होता है लैब के ऊपर. Right. अगर हमारी लेबोरेटरी अच्छी नहीं है या फिर लेबोरेटरी में जो साइंटिस्ट काम करते हैं हमारे फील्ड में, उनको हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट. Yes. हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट अगर एक्सपीरियंस नहीं है, प्रॉपरली ट्रेन नहीं है, तो हमारे रिजल्ट्स अफेक्टेड होंगे. Okay. सो दे आर द सोल ऑफ एनी IVF क्लिनिक. लेबोरेटरी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है. एम्ब्रियोलॉजिस्ट का भी रिस्पॉन्सिबल होना, एजुकेटेड होना एंड वेल ट्रेंड होना इक्वली एज इम्पॉर्टेंट एज ए क्लिनिशियन. दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, Right. बट दे वर्क बिहाइंड द सीन. दिस इज समथिंग लाइक एक्टर एंड एक्ट्रेस को तो हम सीन पे देखते हैं, Yes. डायरेक्टर को हम सीन पे नहीं देखते. Got. लेकिन विदाउट ए प्रॉपर डायरेक्टर Yeah. कोई भी अच्छी मूवी नहीं बन सकती. Noted. विदाउट ए अच्छी लेबोरेटरी एंड विदाउट ए अच्छे एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक इनफर्टिलिटी क्लिनिक कभी भी अच्छी नहीं बन सकती. उसको सक्सेस उतनी अच्छी कभी नहीं मिलेगी. Noted. और इस पॉइंट पे आप क्रेडिट किसको देना चाहोगे? यू आर लुकिंग फॉर ए वर्ड माय वाइफ्स नेम. Yes. No, I must. she is a trained embryologist. She is one of the first embryologist in the Northeast. Very dedicated and very knowledgeable. I have to give lot of contribution, lot of credit for our success, our journey. Yes. Our journey was definitely incomplete if I don't give any credit to her. So definitely she deserves all the credit for her contribution. I get that. So you've trained more than 400 doctors, 500 doctors, Right. and doctors come to you from the whole of India and even abroad Yes. for training. Yes. We want you to add something to that. Basically, I think I am giving training to different doctors, being in a private setup since last 15 years. How it started, I will tell you. I always believed teaching is the best way of learning. I was very selfish. I am very selfish. Right. And when I was writing, I was always, sorry, my thoughts are a little muddy here. When I was practicing, I always used to read. I always used to love reading. मैं अभी भी बहुत पढ़ता हूँ. I read a lot. Right. And मैंने अपने कॉलेज टाइम पे भी ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन, ड्यूरिंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन, मैं अपने जूनियर्स या कलीग्स के साथ बहुत डिस्कस करता था. एंड डिस्कशन करने का मतलब था कि दो बेनिफिट्स होते थे कि एक तो उनके माइंड में क्या है वो मेरे को सीखने को मिलता था, और मैंने जो पढ़ा वो सही पढ़ा नहीं पढ़ा उसके ऊपर डिबेट्स हो जाती थी. अगर सही पढ़ा तो वो मेरा रिवीजन हो जाता था. बराबर. आई यूज टू डिस्कस ए लॉट ड्यूरिंग एवरी कैंटीन में या फिर ड्यूरिंग लंच आवर्स या फिर OPDs में हम बहुत डिस्कस करते थे. आई गॉट ए वेरी गुड बैच. एंड आफ्टर माई ग्रेजुएशन व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस फॉर फर्स्ट ईयर 10 years आई वॉज डूइंग माई ओन प्रैक्टिस. तो आई यूज टू मिस दिस डिस्कशन कि मैं जो लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ. कैन आई डू बेटर देन दिस? The knowledge exchange. नॉलेज एक्सचेंज नहीं होता था. मैं लिख रहा हूँ, जो मैंने जो प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया अपने पेशेंट को Right. वो लिख दिया. हाँ. आई एम नॉट इन ए मेडिकल कॉलेज. मेडिकल कॉलेजेस में भी सीनियर ने बोला जूनियर ने लिख दिया. वी डू डिस्कस ए लॉट, लेकिन ये चीज़ मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस में बहुत लैकिंग होती थी. एंड आई यूज टू मिस दैट डिस्कशन. तो आई स्टार्टेड इनफर्टिलिटी ट्रेनिंग कोर्स, क्योंकि उस टाइम पे कहीं भी कोई ट्रेनिंग कोर्सेज नहीं थे. इनफैक्ट आज भी पूरे वर्ल्ड में बहुत लिमिटेड जगह हैं जहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग होती है. देर आर कोर्सेज, गुड कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, 2 days कोर्स, 2 week कोर्सेज, परंतु लॉन्ग टर्म कोर्सेज बहुत कमती जगह है जहाँ पूरा इन डेप्थ ट्रेनिंग दे सकें. देन आई स्टार्टेड, आई थिंक 2015 में मैंने स्टार्ट किया था. 2015 में भी मोर देन दैट, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. 10-15 years बैक मैंने रैंडमली एक थॉट केम कि लेट्स स्टार्ट सम डिस्कशन. इट वाज नॉट ए थॉट, वाज नॉट कि उसको ट्रेनिंग देनी है, बट एक डिस्कशन के लिए एक कलीग को इनवाइट करते हैं कि जिसके साथ बैठ के उनको भी कुछ सिखा सकें
और उनसे भी कुछ सीख सकें. ठीक है. सो वी स्टार्टेड आवर ट्रेनिंग कोर्स द इनफर्टिलिटी. हम सर्टिफिकेट 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्ट करते हैं. तो स्टार्ट वैसे किया था मैंने. एंड सिंस देन it is a wonderful journey. Usually I take 2 students, 2 doctors every 6 months. So at a time मेरे पास 4 डॉक्टर्स हमेशा रहते हैं. When I am writing a prescription, it is my mind who is writing and there are 4 other mind who are asking me question. सर ये क्वेश्चन, ये प्रिस्क्रिप्शन, ये मेडिसिन क्यों लिखी? ये इन्वेस्टिगेशन लिखा, तो ये इन्वेस्टिगेशन आपने क्यों लिखा? तो 4 different minds are asking me questions. My mind is writing the Yes. prescription. Yes. 4 different minds are asking me questions कि ये मेडिसिन, ये इन्वेस्टिगेशन क्यों लिखा? ठीक है. And I have to justify that. And it's your practice. It's my practice. It's a blessing in a hidden format. Yes. Where So they are I'm getting teaching trained. them हाँ. less. I'm learning from them more. This is reminding me of a book I must mention, Robert Greene की Mastery book. Okay. मैंने 3rd attempt में फिनिश की वो बुक और वो अभी भी कम है. उसमें वो एक अप्रेंटिसशिप की बात करता है रॉबर्ट ग्रीन, और वो मुझे उसमें क्लियरली लिखा हुआ है अप्रेंटिसशिप नेवर एंड्स. एंड दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग अ लाइव एग्जांपल व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस, दैट आप सीख भी रहे हैं और साथ में आप सिखा भी रहे हैं. Teaching is the best way of learning. Trust me, nothing can be better teacher if you start becoming a teacher. About that. Yes, and teaching with practice, the learning curve amplifies. Yes. Yes. We'll shift gear to the Institute of Human Reproduction, aka Goenka Nursing Home, what Yes. people know as, and some of them are also confused whether it's still a hospital or not. Some maybe, Right. right? And heavy is the head that wears the crown. In your shoes, where you have multiple responsibilities. Running a fertility and maternity hospital. What is your how have you balanced it out so beautifully? Goenka Nursing Home was started by my dad, 1980. He started this hospital, and once we started offering treatment, once he started offering treatment in infertility, his entire focus shifted on infertility, and he thought there should be appropriate name for it. Then he kept with the relation with human reproduction because his focus was only in the reproduction at that point of time. He was conducting delivery, but primarily he shifted his focus into the infertility. Then we started that change the terminology to the Institute of Human Reproduction. Now it is popular with both the names. People know it as a Institute of Human Reproduction, Yes. or in short IHR, IHR. or Goenka Nursing Home. So all three stands good, and I joined him in 2000, and now I'm here. Right. 25 years, 26 years of journey now. Yes, of journey now. And you were mentioning to me when we were discussing by the coffee about some business lessons. Would you recreate that for us? Okay. Basically, I want to say communicate, communicate, communicate. Yes. If we are not communicating to each other, then we are leaving other person in front of us. We are allowing the person in front of us to imagine about us. What you are thinking, I can never imagine 100% correctly. If you are not communicating with me, if I am not communicating with you, we are allowing overthinking, we are allowing assumptions, we are allowing presumptions, which can mislead us, which can create confusions. So there is a law. There are 5 different laws of business. One law specifically, I think I mention this law every day in my day-to-day life. That is Kidrin's law, and which says that if you start writing your problem, if you can write down your problem, half of your problem will be solved. Basically, what he meant, when we talk about any problem, when we think of any problem, our mind is filled with so many other things, and our problem is somewhere hidden in this lot of thoughts. Yes.
कहीं हमारे ब्रेन में है प्रॉब्लम, हाँ, लेकिन कहीं हमारे थॉट्स, इतने सारे थॉट प्रोसेस हैं, उनके बीच में कहीं छुपी हुई है, राइट, एंड वी आर सफोकेटेड विद दैट प्रॉब्लम, कहीं निकल के नहीं आ रही प्रॉब्लम. वंस वी स्टार्ट राइटिंग Right. मीन्स वी आर स्ट्रीमलाइनिंग यस, our problem. यस, Streamlining means once we are streamlining means we have our solutions also, we are making it out. This is what exactly Keglin stated. Write down your problem, half of your problem will be solved. Remaining half of the problem which are not solved, यस, you are able to express them properly. So आप जिसको express कर रहे हो उसको भी आप सही तरीके से express कर रहे हो. And during this expression, ideas will pop up. राइट, आपने अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हो, जो इनिशियली आपकी प्रॉब्लम आपने सोची नहीं थी, सॉल्यूशंस जो नहीं सोचे थे, वो सॉल्यूशंस भी आपके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे. प्लस आपने किसी के साथ शेयर की है हाँ. और प्रॉपर तरीके से शेयर की है, हाँ, तो उसके साथ भी आपको रिस्पॉन्स बेटर मिलेगा. गॉट दैट, सो That's आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस. राइट. एक और चीज़ है इसमें, बिजनेस लीडरशिप. जो मेरा पर्सपेक्टिव डीपर था, जो आप लेकर आए टेबल पे, वो नया था मेरे लिए थोड़ा, और ऑडियंसेस के लिए भी कन्फ्रंटिंग हो सकता है. एंड मेरा मोर मीनिंग था कि आज शायद कहीं ना कहीं काफ़ी जन ये सोचते हैं कि अगर डॉक्टर्स हैं तो शायद अच्छे बिजनेस लीडर्स नहीं हैं या नहीं हो सकते. दे आर राइट. दे आर राइट. दे आर राइट. अच्छा. हम डॉक्टर्स को यूजुअली फाइनेंस मैनेज करना नहीं आता है. हाँ. यूजुअली जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, हाँ, doctors are poor in managing finances. Not all. Not all. Exceptions are always there. Yes. But in general, I personally feel we are poor in managing finances. And there are always solutions out there, no? There are always. We just have to ask, communicate. Communicate. Yes. we are poor in. हम अपनी limitations को भी कई बार properly communicate नहीं करते. Yes, agreed. And I hope a lot of financial consultants out there are listening and making use of this ready opportunity and the gap in the market. Yes. Right. Closing question. Yes, sir. If you could change one thing about how young adults understand fertility before they ever walk into a clinic, what would it be? अपनी लाइफ स्टाइल पहले मेंटेन करो. आप बोलते हो कि आप अल्कोहल नहीं लेते, ओकेजनली लेते हो, और आपके ओकेजन्स रेगुलरली आते हैं, तो फिर नहीं आओ क्लिनिक में. अपने लाइफ स्टाइल मेंटेन करो, अपना वर्क एंड फैमिली लाइफ को बैलेंस करना सीखो. हर चीज़ का टाइम होता है. अंडरस्टैंड योर बायोलॉजी, अंडरस्टैंड योर सिचुएशंस, Yes. एंड टेक ए डिसीजन टुडे. उसको कल के ऊपर पेंडिंग मत रखो. Understood. Yes. चीज़ें को सिंपल रखो. Yes. Don't make things complicated. Communicate with your partner, communicate with your family members, and don't hesitate. गलतियाँ करो. Do mistakes. Mistakes से सीखोगे. Right. Don't hesitate to commit. Don't hesitate to commit mistakes. Right. Don't hesitate to communicate. That's it. Understood. I don't want to talk too much about this thing. Right, I get that. And thank you so much for giving us your abundant time out of your busy schedule. So many people would have been waiting to see you, and you took time out for us. I'm very, very grateful. Thank you, Deepika. Yes, sir. Pleasure is all mine. Yes.